Hello everyone, this is Deepika Avasthi. Welcome to my channel Verbology. In today's session, we are going to solve parajumbles. You must be thinking what extraordinary or what differently we are going to do in today's class. We have seen such parajumble sessions, and of course, we are already doing it with our teachers. So why should we really see this particular session or video? So the thing we are going to do differently is, first of all, know certain tips or things we have to keep in mind while we approach parajumbles. What are the important skills you need to really incorporate to have to ace parajumbles with 100% accuracy? We're also going to solve some advanced level hard questions from last 3 years, that is CAT 2023, CAT 2022, and 21. Only the advanced or hard level questions, so that when you solve easy or medium level questions on your own in self practice and homework, you know, okay, what, how to approach, what to do. And if you just do that consistently, I'm very sure very soon you're going to get 100% accuracy. So stay tuned till the end. This session is going to be divided into three parts. First part, we are going to discuss all the tips and skills needed to ace parajumbles with 100% accuracy. After that, we'll start solving and applying all those techniques and strategies we have learned in all the advanced level CAT 2024, CAT 2023, 22, 21 questions. But this is a session for students who are aspiring for CAT 2024. And at the end, we are going to revise all the concepts, so that you can immediately today or tomorrow incorporate all those tips, all those things when you solve on your own. So let's get started without further ado, everyone. जब मिल गया है मुझे पीपीटी, चलो। सो आइडियली कितना टाइम हमें लगाना चाहिए टू सॉल्व पैराजंबल? जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, आप जल्दी करने ही वाले हो, इजंट इट? देयर इज नो ways about it. But ideally, if I say, even if you're able to solve in 2 minutes, students, in exam I'm talking about, अभी हो सकता है मैं ज्यादा टाइम लगे, तो भी it's not bad. Now if we take 2 minutes on an average, some questions may take less time, as an exam is good mixture of easy, medium, hard questions. But let's say 2 minutes हम लेते हैं, तो पहले 30 to 45 सेकेंड्स में आपको सॉल्व नहीं करना है. यस, यू हैव हर्ड इट करेक्ट. आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इन 30 to 45 सेकेंड्स. बहुत लोग को बहुत जल्दी होती है, ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ते चले जा रहे हैं उनको वैसे वैसे सीक्वेंस मिलते चले जाए. ऐसे नहीं होगा. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. You have to read, identify the main topic. What is the purpose here? What is the main topic? What are the subjects here? So read carefully, imbibe, understand, oh, this is what the topic is, this is how, this is what the voice is. Voice as in casually बोल रहे हैं, formally बोल रहे हैं. This is a problem to solution type of पैराग्राफ और कॉन्सेप्ट है, और उसके एग्जांपल्स, डिटेल्स, डेटा बाद में गिवन है. जस्ट एक आइडिया लगाओ उसका पैटर्न क्या है, मेन टॉपिक क्या है, like that. Once you have figured out the pattern as well as subtopics of the paragraph, then look for keywords. This is second point is something, students, you are going to, it is going to be helpful for you for each and every question of CAT exam, right? CAT 24 में आपको ये second tip 100% काम आएगी. First tip भी of course main topic समझेंगे तभी होगा. Before we really understand keywords and indicators, you need to also know reading skill goes a long way. Anyone who wants to do really well in verbal section of CAT 2024 or CAT 2025 for that matter, your reading has to be perfect. What do I mean by that? You have to spend half an hour to 1 hour daily reading something. For example, editorials, for example, magazines. If you don't like reading, you can start with something you like, right? Start with the topics you like to read. Just start with novels, maybe. मैं तो ये बोलूँगी भाई, go as maybe as simple as you can start with comics, right? English comics. अगर आपको उसी से आप 1 घंटा बैठ के concentration में पढ़ सकते हो. And once you get the habit in a week or 10 days, slightly transition करो to novels, to editorials, to magazines, to newspapers, etc. ठीक है. कमिंग बैक टू सेकेंड पॉइंट, लुक फॉर द कीवर्ड एंड इंडिकेटर्स. तो एक चीज हमको समझनी है, किस तरह कीवर्ड्स हमें कैट के क्वेश्चन से मिलेंगे और किस तरह के नहीं मिलने वाले. मोस्टली तो नहीं मिलने वाले. You get 4 sentences in exam, and then you have to type your sequence in a certain box given below all these 4 sentences, C, B, D, A, B, C, D, whatever it is. Most of the time, students, you're not going to get an introductory or concluding
सेंटेंस। लाइक ये कीवर्ड्स आपको शायद अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स में काम आ जाए, जैट, इनमैट, एक्सेट्रा, बट डेफिनेटली नॉट इन कैट एग्जाम, राइट? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इंट्रोडक्टरी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों? बाकी में क्यों इजी? बिकॉज जनरली दैट्स हाउ एवरीवन वांट्स टू सॉल्व, कि ठीक है पहले सी आया, फिर बी आया, फिर डी आया, ए आया। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस टुगेदर इन क्लास, क्वेश्चन ये होता है कि ए पहले क्यों नहीं आ सकता है? बिकॉज जनरली एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपको जो क्वेश्चन दे रहा है कहाँ से देगा, और उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो एक ही तरीके से सोचते हैं। हाउ एग्जैक्टली दे पिक अप योर फोर सेंटेंसेस जो जम्बल्ड अप होते हैं। लेट्स से देयर आर थ्री पैराग्राफ्स इन एन आर्टिकल, तो इस सेकेंड आर्टिकल की थर्ड लाइन उठाएंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो थर्ड लाइन जो होगी इसकी, वो हावेवर, दिस, दैट, दीज, दोज, शी, ही, उससे भी तो स्टार्ट हो सकती है। आपको प्रॉपर पहले नाम ही हो फिर प्रोनाउन ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना इतने सिंपल तरीके से मिल जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फाइंडिंग इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। and sometimes you do find that you're lucky, it's easy scoring, solve kar lo, but do not expect that. What you should expect, you should expect other kind of keywords, comparative keywords आपको for sure मिल जाएंगे, contrasting keywords आपको मिल सकते हैं, connector वाले additionally, apart from ये सारे keywords मिलने के आपके बहुत ही high chances हैं। So when you read all four sentences to figure out the main topic, पढ़ते पढ़ते आपको definitely एक keyword मिलेगा, 100% मिलेगा, not even 99%, based on which you can start making your first pair. तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? नॉट टू फाइंड एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस, बट रादर टू फाइंड योर फर्स्ट पेयर, कि ठीक है यार बी में दीज लिखा है तो दीज रेफर टू दीज पीपल, तो ये सब में पीपल के बारे में कहाँ बात हो रही है? बी में अब बात हो रही है, ठीक है, तो सी बी इज अ पेयर। ना जस्ट बिकॉज यू फाउंड सी बी फर्स्ट, इट डजेंट मीन कि सी बी पहले से, सी बी से स्टार्ट होगा ना। सी बी कैन फिट इन हियर, CB can fit in the center. CB can be the last two sentences of sequence that we'll see later. Yeah. So form mandatory pairs. Now, if I ask you, if we do a practice session on just two sentences of parajumble, मतलब मैं आपको question number one दिया, दो sentences, question number two again two sentences, and if I simply ask you just arrange these two only, कि what should come first and what should come later, BA or AB, B or AB every time, it will be far easier for you to solve, no matter how difficult the language is, how lengthy the sentences are, because when you read all four sentences, it gets a little confusing, a little distracting, because you try to keep everything in mind. So once you have made one pair while reading everything, क्या बचा? जैसे आपने CB एक पेयर बनाया, बचा A और D, तो just focus on A and D, और देखो AD पेयर होता है, DA पेयर होता है। Practically speaking, sometimes you will get that second pair and sometimes you will not, right? तो फिर क्या करना है? अगर आपको second pair नहीं मिल रहा है, if you're getting it, you're almost 90% in. If you're not getting the second pair, what you have to do is, then out of four sentences you will get a three sequence, कि यार ये दो CB इस बारे में बात कर रहे हैं, A gives more detailed examples on that. अब D का पता नहीं कि D has to come in the start or end, because either it's on the same topic but either it is introducing or concluding. तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कि हो सकता है आपको पेयर ना मिले कि A will come with D, or because it is the information A is closer to C and B and D we are not very sure. So if you do not get second pair, make a sequence of three statements. That is something again you can do. So your second step should be a pair or a sequence of three. एक और आपको देखना है आप उसके आसपास कहाँ जोड़ सकते हो, ठीक है? If you get nouns, pronouns, antecedents, that is subjects और activities का description कहीं पे हो रहा है तो वो भी देखो. Very important for you, very important point you have to keep in mind is एक कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं कि हमने चार सेंटेंसेस देखे, इसमें कुछ कीवर्ड्स लिखे, इसमें कुछ कीवर्ड्स लिखे, तो यार यही पेयर होगा। नहीं, दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू फर्दर, यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ यार वर्ड्स ही मैच कर रहे हैं तो यही आंसर होगा, बट नॉट नेसेसरीली। मीनिंग मैच इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन कैट एग्जाम एज कंपेयर टू वर्ड मैच, राइट? दो सेंटेंस सेम तरीके की बातें करनी चाहिए, दे शुड बी लॉजिकली फॉलोइंग ईच अदर rather than just because they share some common words and that's why they are a pair, right? So logical sequencing, logical sense, as well as meaning carries much more weight in parajumbles rather than just the words. Okay. Use time sequencing. Time sequencing again, this is something you अभी तक हमने जितने भी तीन पॉइंट्स की, ये आपको 100% मिलेंगे हर पैराजम्बल में, आप उसको अप्लाई कर सकते हो सारे क्वेश्चंस में। Whereas when you use time sequencing, sometimes you get, other times you may not, right? अगर आपके पास कुछ वर्ड्स हैं later, when,
आफ्टर, तो आप उसको यूज कीजिए टू मेक द पेयर एंड डिकोड योर पैराजंबल, weave the sentences together, and if not, then of course let it be. So it's not like every time you will get certain things, but yeah, all these things you will get. तो अब 3 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो आपको फॉर श्योर मिलेंगे. नाउ कैट के अलावा, बिफोर वी गो ahead, you need to understand these parajumbles are not going anywhere. ये आपको अपकमिंग सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स में आने वाले हैं, और कैट में तो ऑब्वियसली आने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट. इस बार 2 आए हैं, जनरली 3 to 4 क्वेश्चन आते थे, एंड आई एम अज्यूमिंग कैट 2024 में भी अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम फॉर श्योर आएंगे. सो अगर आप कैट के क्वेश्चंस, कैट के पैराजंबल अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, जहाँ पे जो कंपेरेटिवली हार्ड है, नाइदर ओपनिंग नॉर क्लोजिंग सेंटेंसेस गिवन, लाइक पॉइंट 4 अगर आप देखो, तो अगर आपने वो सॉल्व कर लिया, तो आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम विथ अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स पैराजंबल, जहाँ पे या तो ओपनिंग क्लोजिंग सेंटेंस गिवन है या ऑप्शंस जनरली गिवन होते हैं, राइट. इस तरह के जितने भी आपको जो पैटर्न है, दैट यू गेट इन अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स. फोर्थ इज समथिंग वेयर देयर इज नो हिंट, नो ऑप्शंस, is what you get in CAT exam. So you just have to focus right now on CAT level parajumpers, and automatically everything will become easy for you. Okay. So a quick revision of what we have first of all understood. अभी तक हमने क्या समझा, और फिर हम आगे कुछ और tips and skills discuss करेंगे before we get started with the question. So read the parajumble, right? Get the feel of it, get the vibe of it. क्या tone है, क्या topic है, what are the subtopics. Look for the opening sentence, right? If you're lucky, look for a closing sentence. अगर आपको ये सारे words मिल रहे हैं तो, and if you do not get any opening or closing sentence, do not worry, just focus on making the pairs. Weave the sentence together based on chronology, connectors. ये तो आपको 100% मिलने वाला है. Once you get that, देन सी और क्या हिंट्स गिवन है. क्या हमारे पास कोई फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म टाइप का कुछ है? अगर है तो फुल फॉर्म विल ऑलवेज कम फर्स्ट, लाइक सीपीयू उसका फुल फॉर्म क्या होता है, और फिर बी के बाद ही आप सीपीयू क्या करता है, इट इज कंसिडर्ड व्हाट एंड एवरीथिंग आप बाद में बोलोगे. सो फुल फॉर्म्स ऑलवेज विल कम फर्स्ट, एंड देन उसके शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रिविएशंस आएंगे. जस्ट कीप दैट इन माइंड. Now, second, this is the point, something which is going to be useful in 90% of the parajumble questions for you. Ideas and examples. You always introduce an idea, you always talk about a particular concept, और फिर उसकी details, उसके examples, उसका कोई data, number, वो आप बाद में देते हो. Right? So you have to see it like that. This, for example, the ocean floor is divided into many parts. How many parts? What are the name of those parts? So then you will say continental shelf, continental slope, abyssal plain, oceanic. अभी देखो ये 2 सेंटेंस ही अभी हम कर रहे हैं, तो it looks very easy. Of course, the language and the length, if I increase, the length थोड़ा सेंटेंस का बढ़ा देते हैं, language थोड़ी hard करते हैं, still it comparatively easy है than like solving a parajumble from 4 sentences. So the takeaway so far is the learning is टेक योर पैराजंबल इन बाइट साइज पीसेस. आप उसको पूरा पढ़ के देखो सबसे पहले कि मेरे पैर क्या बचा, जो उसको फिर सॉल्व करो. इफ यू टेक इन बाइट साइज पीसेस, देयर विल बी लेस कंफ्यूजन, लेस डिस्ट्रैक्शन, लेस एंजाइटी while solving parajumbles, and you will end up getting correct answer quickly as well. ओके. सो या, सो कनेक्टर्स, ट्रांजिशन वर्ड्स हमें दिमाग में रखना है. किस तरीके के कनेक्टर्स हैं ट्रांजिशन वर्ड्स, लाइक हाउएवर, बिसाइड्स, नेवरदलेस, ऑल्दो, दो. ये सब कॉन्ट्रास्टिंग है, लाइक ऑल्दो, दो. लाइक इफ आई से यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, ऑल्दो, या यू आर अ वेरी नाइस पर्सन बट I can't be your friend. You're a very nice person and I want to be your friend, isn't it? So जब हम and से चीजें connect कर रहे हैं, moreover, furthermore, the 2 sentences have to carry similar kind of tone. दोनों positive होंगे, दोनों negative होंगे. But if I say you are a good person but, अब कुछ नेगेटिव आने वाला है ना, समथिंग नेगेटिव. सो कौन से वर्ड से कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, किससे पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ये भी हमें वी हैव टू कीप इन माइंड while we solve or while we learn solving parajumbles. Now articles, some amount of vocabulary and grammar definitely you need to take into account while you go for your these parajumbles, because CAT exam may not directly check your grammar, may not directly check your vocabulary, but if that's good, definitely it is indirectly checked, and that is something we'll see in some CAT 2023 पैराजंबल ऑल्सो. आज हम CAT 2023 के पैराजंबल कर रहे हैं, अब आपको दिख जाए कैसे आपकी वोकैब और ग्रामर भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट चेक होती है, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू फोकस एटलीस्ट ऑन द बेसिक पॉइंट्स ऑफ ग्रामर. Now,
सो ऑलवेज, सो व्हाट आर आर्टिकल्स? द, एंड। सो जब भी मैं बोल रही हूँ तो दैट मीन्स नॉट पर्टिकुलर, जनरली बोल रैंडमली. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल. देयर वॉज अ गर्ल लिविंग इन अ टॉल टावर. कोई लड़की है, किसी टॉल टावर में रह रही है. अब मुझे अगर एक और बार डिटेल देने की इसी इसी गर्ल के बारे में, द सेकेंड टाइम, देन आई विल से दो, isn't it? और देयर इज अ हाउस, एंड इन द हाउस देयर लिव्स अ फेमस सेलिब्रिटी. तो पहले मुझे कह रहे रैंडम घर है मेरे घर के साइड में, और उस घर में जब मैं वापस बात करूँ, ऐसे इन दैट हाउस, इन द हाउस देयर लिव्स अ फेमस सेलिब्रिटी. सो द गर्ल हैड अनयूजुअली लॉन्ग हेयर एंड द टावर. फिर टावर के बारे में भी आप सेकेंड टाइम बात करें, दो तो ओ पहले आएगा, द विल कम आफ्टरवर्ड्स. जस्ट कीप दैट पॉइंट इन माइंड. प्रोनाउंस. प्रोनाउंस इज समथिंग ऑल ऑफ अस नो कि हाँ यार, ऑब्वियसली नेम पहले आएगा, प्रोनाउन बाद में आएगा. देखो ये जितने भी बेसिक अप्रोचेस हैं, ये दिस इज ओनली फॉर यू टू गेट स्टार्टेड. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कैट इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट एग्जाम, है ना. वो ऐसे बैठा नहीं हो कि हाँ आप ऐसे कोचिंग लेके आओगे और आपको एग्जैक्टली नाउन टू प्रोनाउन दे देगा, आप लगा दोगे और बस हो गया. नहीं, ये जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड, जस्ट फॉर यू टू फील कंफर्टेबल विद द क्वेश्चंस. As I said, they may pick up third line, third, fourth, five, six जो ही से स्टार्ट हो रही है और नाम है ही नहीं, तो कहाँ नाम ढूंढते फिरोगे. तो ये आपको स्टार्ट करने के लिए, बट प्रैक्टिस से ही मीनिंग, लॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर कुछ नहीं आता है. ये भी आपको समझना है, जो कि रीडिंग से इम्प्रूव होगा एंड प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगा. ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन अप्रोच फॉर ऑल द क्वेश्चंस टू गेट मैक्सिमम एक्यूरेसी. जो आज हम सीखने वाले हैं, एट द सेम टाइम उसी चीज को अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी. करेक्ट. ठीक है. एडजेक्टिव्स ना, एडजेक्टिव्स मतलब क्वालिटीज और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नाउन, लाइक यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ बैड पर्सन, राइट, यू आर अ टॉल पर्सन, ऑल दीज थिंग्स. तो मैं ये किसके बारे में, किसी पर्सन के बारे में बोल रही हूँ, नाउन के बारे में. दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस, और आई डोंट लाइक टू गो टू दिस प्लेस इज वेरी क्राउडेड. तो क्राउडेड इज, मैंने डिस्क्राइब किया किसी जगह के लिए, तो इट्स एन एडजेक्टिव. सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, राहुल्स परफॉर्मेंस वॉज गुड, अशोक्स परफॉर्मेंस वाज बेटर. ठीक है, पर वो परफॉर्म कहाँ कर रहे हैं, बी. राहुल एंड अशोक डांस्ड ऑन द, पहले डांस किया. अब डांस अच्छा है, बुरा है, बेटर है, वर्ड्स है, दैट विल से लेटर. सो इसमें बी पहले आएगा, और फिर गुड, बेटर, बेस्ट, बिकॉज डिग्री इस तरह से ग्रामेटिकल है. सो बी ए सी शुड बी द राइट ऑर्डर. ओके. Time sequence approach. Time sequence approach, for example, what? So again, a lot of things. Sometimes dates are given, years are given, before, later, after, when. Such kind of words are given, which will help you to find a pair. Let's take a simple example here. Uh, Hemant eats his dinner at 8 p.m. sharp. ठीक है. अब पोस्ट होमवर्क लिखा है यहाँ पे. एक तो देखो, he, he, that way we know BC बाद में आएगा, A से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज A carries the name. उसके बाद ही मैं ही यूज करूंगी. देन पोस्ट होमवर्क है, यहाँ पे सी में वी आर सेइंग ही डज हिज होमवर्क. तो होमवर्क के बाद, तो सी बी, इजंट इट, लाइक दिस. तो जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं तो इन सब वर्ड्स पे फोकस करना आसान है, but when the language gets difficult, then only we start getting answers wrong. So actually the problem is not the logical sequence or logical thinking. The problem is comfort with the language, and that's why apart from practicing daily half an hour to 1 hour reading is crucial for all the CAT 2024 2025 aspirants. When you look at this example, only this one has name, so you know for sure that it has to start from B. और उसके बाद आप बाकी की चीजें also morning, evening, then goes to, he is a hard working person. He then goes to work as a professional assistant to a businessman. मतलब वो सबसे पहले मॉर्निंग में न्यूज़पेपर बेचता है, BA, उसके बाद काम करता है और शाम को आके फिर वो ट्यूशन लेता है, like that, isn't it? So morning, evening helps you, then helps you all these keywords. Right. Concluding statements. If any of these sentences gives any advice, summary, recommendations, suggestions, they should be kept at the end because they are concluding statements, right? कभी भी अगर आपको थोड़ा confusion है तो please reread, especially when you start preparing. Ideally, but for exam, I would say आपके preparedness level, preparation level इस line पे होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए कि when you get 4 sentences in one go, in one read, you have understood the meaning. ठीक है, ये बात कर रहे हैं like 30 to 45 seconds. This should be your reading level. And again, as I said, if today you're facing difficulty in doing that within 30 to 45 seconds,
please start reading for 30 to 45 minutes every day, and you will see that difference in comprehension, in understanding difficult passages within 1 to 2 months. You will see that. At the same time, practice भी करना है ना questions की. ठीक है. So just few tips and then we are starting with the question. Just if the sentence is too lengthy, focus on just making the pairs as I told you. हमेशा जब भी आप नॉवेल्स न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नोटिस करो कैसे सेंटेंस को साथ में कनेक्ट किया गया, कैसे वीव किया गया है. रीड अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ पैसेज. थोड़ा सा आप लाइक नो प्रिपेयर करो, एज इन लाइक नो फोकस करने का. ठीक है, ये सेंटेंस को ऐसे करा गया. अपनी वोकैब भी इंप्रूव करो. कई बार यू नो द लॉजिक बट बिकॉज ऑफ वन वर्ड और टू वर्ड्स you don't know how to start or how to connect, right? And as I said, grammar and vocabulary definitely is indirectly checked in your CAT exam through reading comprehension, para jumble, summary, odd one out, everything, right? Para completion. So let's get started. You have the potential to be anything you want. All you have to do it, give some time, give some efforts consistently throughout certain time for few months, and ultimately उस चीज का result आएगा. आज आप 8 घंटे पढ़ते हो, कल कुछ नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं होगा. Rather, if you give some consistent of efforts, तो definitely होगा. Now, the very first question we are doing, I've kept options. Why did I keep options? सिर्फ इसमें ही है for a certain reason, right? वो क्या reason है? रुको यार, ये ऊपर इसको हटाते हैं. रुको, ये कहाँ पे इसको रख सकते हैं, इस बॉक्स को पहले एडजस्ट करते हैं. यस. सो एज आई वाज सेइंग दैट इन कैट या सो एज आई वाज सेइंग दैट इन कैट क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई ओपनिंग या कोई क्लोजिंग सेंटेंस होगा, है ना. सो फिर कैसे करेंगे? अगर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो फिर कैसे सॉल्व होगा? तो लेट्स से मैंने इधर पे आपके लिए ऑप्शंस रख दिए. व्हेन यू रीड समथिंग, आप इसको स्टार्ट करो रीड करना. व्हेन यू रीड समथिंग, दे इज मेंशन्ड, isn't it? They refers to who? कौन? People, they look perfect pets. People are not perfect pets. Reptiles could be. है ना, exotic, quiet, tidy. they किसको रेफर कर रहा है पता नहीं. अब एक और है, when you read further, but is for contrast. अभी हमने डिस्कस किया था that you are a good person but I can't be your friend. Positive to negative. तो अगर मैं इधर पे like lizards and other pets can harbor a salmonella bacterium that makes people sick. मतलब बेसिकली लिजर्ड्स और ये जितने पेट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोगों को बीमार कर सकते हैं. इनमें बहुत बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होता है. तो यहाँ पे हम कि दे लुक टाइडी एट फर्स्ट. आप उनको देखो तो बड़े टाइडी एंड क्लीन लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट दैट क्लीन. में बैक्टीरिया है. So we don't know how it will start and all, but we definitely know that BD is a pair, isn't it? Now we just have to focus on option or on sentence A and C. A C होगा कि C A होगा, आप देखो अभी खुद से सॉल्व करके, और फिर उसके बाद हम सीक्वेंस बना लेंगे. तो एज वी ऑल्सो डिस्कस स्टूडेंट्स कि पहले आप जनरली कोई चीज को बोलते हो और फिर उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स देते हो थोड़ा. तो यहाँ पे मैंने डी में इंट्रोड्यूस किया कि इसमें ये बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला बैक्टीरिया. अब ये जो इन्फेक्शन होता है, इट कैन हार्बर दिस बैक्टीरिया एंड कैन मेक पीपल से कितना बीमार बना सकता है. इस बैक्टीरिया क्या इम्पैक्ट है, दैट डेटा इज गिवन इन ऑप्शन सी, इन सेंटेंस सी. A study estimates that in 1995 there were as many as 6,700 reptile caused salmonella. मतलब इतने लोगों को इन्फेक्शन हुए थे. तो मतलब इट कैन मेक पीपल सिक. ऑलमोस्ट 6,700 पीपल गॉट सिक. तो ये कोई सीरियस है, ऐसे ही नहीं कि ठीक है थोड़ा बहुत कुछ होगा एंड यू विल बी ओके. इट इज लाइक क्वाइट इन्फेक्शन. दीज आर क्वाइट इन्फेक्शियस रेप्टाइल्स. अभी इन्फेक्शन होता कैसे, 67 लोग को हुआ कैसे? So if you can get infected by handling reptiles the wrong way or touching their mouths or an open cut or something, so then you're giving more details. So पहले तो आप सैल्मोनेला इसमें बैक्टीरियम है ये बताओगे डी, और फिर ये कितना इन्फेक्शन होता है, कैसे फैलता है, बाद में बताओगे, isn't it? So although यहाँ पे दे से कैसे स्टार्ट हुआ, आप इनिशियली आपको ओपनिंग सेंटेंस शायद नहीं मिलेगा. इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट इफ यू जस्ट फॉलो द पेयर्स की ठीक है बी डी है. और अगर ये क्वेश्चन आपको अदर मैनेजमेंट एग्जाम में आया तो बीडी तो आपको वैसे ही मिल गया था, तो यू एक्चुअली गॉट योर आंसर. बट इन कैट एग्जाम वेयर ऑप्शंस आर नॉट गिवन, दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व. यू डोंट हैव टू फोकस ऑन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स. Yeah, now let's get started with all CAT 2023 questions. Like some of them, I would say some of them I've kept because I felt they were medium or easy level questions. So in next session we are going to be doing it. So yeah,
just pause this particular video, go through the question once, एक बार पूरा पढ़ लो, समझ लो, take 30 to 45 seconds, and then we will be solving it together. Okay, done reading? All right. Okay. Now, when you look at this question, students, we are talking about a certain problem, that is कैसे algorithm की वजह से our decisions are biased, है ना? यही हमने समझा है, ठीक है? So, 3 steps. First of all, let's figure out the main topic कि क्या है. So, algorithmic bias, that's the main topic. All right. Now, one thing, meaning, as I said, meaning as well as keywords, दोनों चीजें आपको मैच करनी है. दूसरा एक और चीज कि एक पैटर्न फिगर आउट करना है. जनरल टू स्पेसिफिक चीजें चल रही हैं, प्रॉब्लम टू सोल्यूशन चीजें चल रही हैं. सो इट्स हियर मोर लाइक अ प्रॉब्लम इज देयर, राइट? उस प्रॉब्लम को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कोई सोल्यूशन दिया गया है, क्या है, दैट विल सी. ओके. Now, despite their widespread impact, whose, what, biases, दो algorithmic, right? Again, doesn't look like, but because में एक term है, ये हो सकता है ना, इसको हम रख लेंगे. And algorithms hosted on the internet are accessed by many, so biases in AI models have resulted in much larger impact, adversely affecting far larger groups of people. Now, कौन से लोगों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? If you read carefully, option 1 and 4 says something similar. What is it? अब कौन सा किसको explain कर रहा है? Accordingly, we'll make a pair. So the 1-4 या 4-1 should be a pair. So let's start reading. Now, actually here, 4-1 is a pair. How? We are here, first of all, talking about a very generic problem, that impact of biased decisions made by humans is localized. For example, all of us Indians think in a certain way, or all those people in that country think a certain way, right? It is different. So जो भी हमारे biased decisions होते हैं कि नहीं यार, we have to give more importance to career, we have to give more important relationships, we have to give like priority to these things or those things, ये इन सबको biases बोलते हैं. सबके अलग अलग होते हैं. तो ये जनरली लोकलाइज्ड होता है, लाइक ज्योग्राफी, एक कंट्री या ज्योग्राफी या स्टेट में कन्फाइंड होता है. और ये कैसे होता है, सब लोग एक उस तरह से कैसे सोच लेते हैं एक जैसा. बट वी आर सीइंग, बट विद द एडवेंट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हुआ, तब से इम्पैक्ट ऑफ सच डिसीजंस स्प्रेड ओवर अ मच वाइड. तो ये ज्यादा लोग ब्रेन वॉश हो रहे, बिकॉज एआई इज इन सोशल मीडिया, एवरीथिंग वी एक्सेस, हर चीज जो हम देखते हैं, हर चीज में एआई है. तो हमारी जो थॉट प्रोसेस वो और ब्रेन वॉश होते चले जा रहा है थ्रू एआई. And this particular impact just जो हो रहा है on much wider scale, much wider audience, that's there in a sentence कि algorithms hosted on the internet, जो internet पे algorithms होते हैं, वो of course YouTube पे हो गया, for example Instagram में हो गया, anywhere else, वो of course we access, not algorithms, actually we access all these places जहाँ पे भी AI है, internet है. So biases in AI models have resulted in much larger impact, which we are talking here, adversely affecting far larger groups of people. तो exactly same चीज कैसे wider scale में ज्यादा लोगों को affect करता है, क्योंकि लोग ये सारी चीज देख भी रहे हैं. अगर मैं आज से इंटरनेट ना देखो तो मुझे क्या करना है, AI algorithm या whatever, it is not going to affect my thought process because it is accessed. This is the reason why does it impact so many people, isn't it? So that makes 4-1 a pair. Now we'll forget 4-1 for a while and just focus on 2-3. So now this is the problem, that biased decisions तो वैसे ही थे, geographically confined. At the same time AI आने के बाद में, क्योंकि सब लोग एक्सेस करते हैं सारी चीजें, तो अब थोड़ा सा और इसका इम्पैक्ट हो गया. नाउ हाउ डू वी सॉल्व इट फर्दर? जस्ट 2 और 3 पे फोकस करो. Now we are saying कि मेन प्रॉब्लम एक्चुअली अल्गोरिथम की नहीं है, राइट? इन टू वी आर सेइंग दो अल्गोरिथम बायस इज द पॉपुलर टर्म. बोलते हैं कि अल्गोरिथम कोई सब लोग चेज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई पीपल पुट रबिश कंटेंट आल्सो, है ना? टीआरपी न्यूज वाले टीआरपी के पीछे भागते हैं, राइट न्यूज नहीं दिखाते, बिकॉज अगेन अल्गोरिथम एंड ऑल दोस थिंग्स. द फाउंडेशन ऑफ सच बायस इज नॉट, पर हम वी आर कि जो बायस डिसीजन लोगों का होता है ये अल्गोरिथम की वजह से नहीं है. Actually, the right thing is data. Algorithms are not biased. For example, if somebody is putting right content, somebody is showing good news, तो ऑफ कोर्स सब लोग उसे देखेंगे, स्टार्ट टू एंड एंजॉय करेंगे, कुछ समझ आएगा. बट कोई इंटरेस्टिंग या रिडिकुलस भी है तो वो भी लोग देखते ही देखते हैं. तो एक्चुअली अल्गोरिथम बता रहा है कि हाँ दोनों चीजें लोगों को अच्छी लग रही है, बट एक्चुअल में एक चीज अच्छी है नहीं. सो इट्स द डेटा जिसकी वजह से देख के लोगों के डिसीजंस, थॉट प्रोसेस थोड़े से स्वे होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं. As algorithms merely reflect persistent patterns that are present. So main problem, now we are giving more detail कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि algorithm की वजह से कैसे, algo की वजह कैसे bias decision होता है.
And in 2, we are saying it's not actually algorithm, it's the data which uh, creates this bias. And so what's the solution? Solution is in sentence 3. So 3 has to come at the end. Despite their widespread impact, it is relatively easier to fix AI biases कि आप इसको fix कर सकते हो, because ultimately it's technology, than human generated biases, because it is simply to identify the former. आप उसको identify कि ठीक है ये इस तरह से लोग ऐसा सोच रहे हैं, वो आप fix कर सकते, than to make people unlearn behaviors learned over generations. जैसे न्यूज देख के, मूवीज देख के, सोशल मीडिया देख के जो भी आपका थॉट प्रोसेस बनता चला जाए, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट वो अल्गोरिथम को चेंज करना फिर भी इजी है. So we have to focus where, now that we know the problem, isn't it? So 3 points out towards this solution, how these bias decisions we can, how one can make a difference in this bias decisions, या क्या हम change कर सकते हैं ताकि लोग के decisions और well informed हो, ये सब होता है algorithm की वजह से. algorithm needs actually data. तो more detail कि पहले algorithm से start किया, now not that but data. So 412 होना ही चाहिए. 3 talks about solution. So right sequence here will be 412 3. Yeah. All right. Now let's move to next question, everyone. This one. Again, please pause the video, go through the question, go through all 4 sentences for a minute, and then we'll be solving it together. Okay, done reading? Okay. So if you focus again on the patterns, these two sentences are in question format, and 2 and 3 are in a way answering these questions, isn't it? Now, what's the question? सवाल क्या है? सवाल है कि क्यों कुछ crimes attract people's attention और कुछ लोग ध्यान नहीं से जाने थे कि हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, more like that. So 1 4 या 4 1 एक बार रीड कर लेते हैं. What precisely are the unusual elements that make a particular case so attractive to a certain kind of audience? Why are some crimes destined for perpetual re-examination? Perpetual वो चीज पे केस चलता रहता है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, मूवीज आती है ना. बहुत सारे ऐसे मर्डर केसेस हुए हैं, फेमस मर्डर केसेस, और किसने किया, कैसे किया, चलता रहता है. एंड अदर्स लॉग इनटू परमानेंट ऑब्सक्योरिटी, मतलब पता भी नहीं चलता कि अच्छा बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, पता भी नहीं चलता है, बहुत सारे क्राइम्स होते होंगे, पता भी नहीं चलता है. सो यहाँ पे जनरल क्राइम्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो वी आर सेइंग कि ऐसे क्या अनयूजुअल, ऐसा क्या डिफरेंट या यूनिक होता है इनमें, इन क्राइम्स में, जिससे कि ये अट्रैक्टिव बनते हैं फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस. और फिर हम यहाँ पे 2 and 3 में वी आर ट्राइंग टू आंसर कि माइट बी रीजन हो सकता है कि वो इतने क्रूअल सैवेज तरीके से मारा हो, depravities, corruptness, like we can't even understand how can someone be so like insensitive. Very often it has something to do with the precise amount of mystery involved. तो कुछ mystery involved होती. This is the solution. अब now 2 3 या 3 2, we are saying mostly, quite often there's some mystery involved. It's difficult to figure out who's the real culprit, who's the real murderer, और बहुत टाइम लगाओ पता करने में. दैट इज वाई इट बिकम्स मे बी इंटरेस्टिंग. तो क्या अनयूजुअल एलिमेंट होता है? वो सारे एलिमेंट्स हम ऑप्शन 2 सेंटेंस टू बता रहे हैं कि सैवेज हो सकता है, अनफेदमेबल मीन अनफेदमेबल आप समझ भी नहीं सकते, आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते द लेवल ऑफ डिप्रेविटी, द लेवल ऑफ इनसेंसिटिविटी, करप्टनेस, या जो मिस्ट्री है उसमें. दैट नाउ मिस्ट्री से हम यहाँ पे कनेक्ट करें कि अनसॉल्व्ड एंड परहैप्स अनसॉल्वेबल केसेस, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, अनसॉल्व नहीं हो सकते. एंड दैट इज व्हाट makes them different from ordinary cases, or something that ordinary murder doesn't. So mystery से ये end हो रहा है, ये unsolved से. 2 3 is one pair. 1 2 is another pair, because here unusual elements हम बोल रहे हैं. कौन से वो unusual elements होते हैं जो कि किसी केस को, क्राइम कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं, और 2 में हम वो सारे पॉइंट्स एलिमेंट्स की बात करें. सो 1 2 3 is one sequence. Now of course this is a question, तो मैं इसको पहले ही रखूंगी rather than at the end of all, कि why some crimes are more interesting than the other. And then we'll see it is because of some unusual elements like the savageness, the depravity, the mystery, and that's what make them different from ordinary, isn't it? So 4 1 2 3. This is, I think, comparatively easy. ना आपको अब समझ आ चुका है ये हमने कैसे सॉल्व किया. कुछ एक कॉमन पैटर्न हमने फाइंड किया, राइट. देन जनरल टू स्पेसिफिक, इफ यू सी जनरल टू स्पेसिफिक ऑलवेज वर्क्स. आप कोई चीज को जनरल बोलते हो, उसके डिटेल्स, एक 1 and 2 इज अ वेरी क्लियर कट पेयर. जैसे 1 2 मिल गया तो आपको पता है 3 भी फिर तभी आना है. तो जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा एक ओपनिंग या क्लोजिंग सेंटेंस मिले. जस्ट यू हैव टू फिगर आउट अ पेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 2 और 2 3, एंड देन रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ विद प्रैक्टिस एट द टाइम, ऑफ कोर्स.
ठीक है. Next question, everyone. Please pause, go through the question, read for a minute, and then we'll discuss this question quickly. All right. Now, when we look at this sentence based on first few words, as well as when we understand the main topic, clearly four is the opening sentence. So यहाँ हमें luckily four sentence opening मिल गया. ठीक है. Okay. One more thing. Let's say you're still not very sure of the first sentence. So at least now we can focus on the pair. Now हमने क्या समझा है कि जब आप पूरा चारों सेंटेंस रीड कर लेते हो तो पहले तो मेन टॉपिक फिगर आउट करो. मेन टॉपिक इधर पे क्या है. ये एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स. अगर आपको इस सेंटेंस में इस पैराग्राफ में एक दो वर्ड समझ आ गए तो देन इट्स इजी फॉर यू. इफ नॉट दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट. एंड व्हाट इज दैट मेन टॉपिक? इमर्जेंट प्रॉपर्टी. इमर्जेंट क्या होता है? इमर्जेंट प्रॉपर्टी बेसिकली कि व्हेन a particular thing doesn't have that property in a certain state, but दो से तीन चीजें combine होती हैं तो वो प्रॉपर्टी आती है. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जांपल वाटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, जब एक बहुत कोल्ड टेम्परेचर कंबाइन होता है इट विल बिकम सॉलिड, और एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इट विल बिकम गैस, इट विल इवेपोरेट, इजंट इट? सो व्हेन फ्यू थिंग्स कंबाइंस, उस चीज में अकेले वो शायद प्रॉपर्टी ना हो, बट व्हेन इट कंबाइंस विद समथिंग एल्स देन दैट इज नोन एज इमर्जेंट प्रॉपर्टी. तो इसी चीज को हम समझा रहे हैं. तो अगर मुझे ये पता है कि व्हाट इज इमर्जेंट प्रॉपर्टी, देन यू विल सी 1 2 3 तो उस चीज को सिर्फ एक्सप्लेन ही कर रहे होंगे, isn't it? But if I don't, then it can get slightly difficult. So improving vocabulary is quite crucial for you to do well in CAT questions. Like especially ये बहुत ही doable और आसान question है. ये सिर्फ ये आपकी इस word की understanding check कर रहा है. ठीक है. Now so 4 is clearly the opening sentence. और अगर मुझे नहीं लग रहा है तो like, although, nonetheless ये सारे words हैं. तो इसके basis पे then we are going to make the pairs. ठीक है. सो फोर सेंटेंस रीड करते हैं. ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज ऑफन कॉल्ड एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन. लाइक वी ह्यूमन, लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस, वी फील थिंग्स, वी आर इंटेलिजेंट, वी नो थिंग्स. ये कैसे? ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी अपने ह्यूमन ब्रेन की. इमर्जेंट प्रॉपर्टी कैसे है? व्हाट डज दैट मीन? दैट वी आर, दैट एग्जांपल वी आर गिविंग इन फर्स्ट कि जैसे एंड्स सब मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं, एक घर बनता है. सिमिलरली एक सिंगल न्यूरॉन does not hold any complex information like self awareness. एक न्यूरॉन वर्क करेगा और फिर उससे मुझे होप, प्राइड, सेल्फ अवेयरनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे इमोशंस या कुछ मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है. इट्स समथिंग एल्स. सो क्या होता है कि nonetheless, in fact, the sum of all neurons in the nervous system generate complex human emotions like fear and joy. In fact, सारे न्यूरॉन्स की, जैसे एंड्स एक कॉलोनी बनाती है, एक एंड से पूरा घर नहीं बन सकता. सिमिलरली एक सिंगल न्यूरॉन डजंट होल्ड एनी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस ट्रेट, होप, प्राइड, ऑल दीज थिंग्स. सब मिलके, like they bring up such emotions, none of which can be attributed to a single neuron, isn't it? So 1 3 is clearly a pair, राइट. अब मतलब कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है कि सब मिलके जो एक पर्टिकुलर इमोशन क्रिएट करते हैं इन अ सर्टेन वे. ऑल्दो द ह्यूमन ब्रेन इज नॉट येट अंडरस्टूड इनफ, हमने इतना समझा नहीं अभी ह्यूमन ब्रेन कैसे इस मैकेनिज्म में कैसे इमर्जेंट फंक्शंस वर्क करते हैं, विच ऑल न्यूरॉन्स like work together for happiness, which all neurons work together for motivation, hope, pride, etc. Most neurobiologists agree that complex interconnections among the parts give rise to qualities that belong only to. पर इतना हमें पता है कि ये इंटरकनेक्शन जरूरी है, इनसे ही सारी चीजें आती हैं. ये सारे इंटरकनेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, हम ये सारी बात किस इमर्जेंट प्रॉपर्टी को समझाने के लिए कर रहे हैं. एक और चीज पे फोकस करो इधर पे कि न्यूरॉन्स इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन से न्यूरॉन का हम एग्जांपल ले रहे हैं जो कि 1 और 3 में ही है मेनली. बाकी फिर तो 2 पे तो अल्टीमेटली कंक्लूडिंग की ब्रेन में इस तरीके से चीजें होती है. एग्जैक्ट हमें डेटा नहीं पता है बट ये होता है, इतना पता है. इसकी डिटेल्स ऑफ कोर्स येट टू बी फिगर्ड आउट, येट टू बी डिस्कवर्ड, need to be yet to be discovered, like that we are saying. So 1, again 1 3 that way clearly is a pet, gives an example of this concept, right? 4 1 3 and then 2 is a concluding statement. So अपनी sequence क्या हुई मैं एक बार लिख देती हूँ clearly. 4 1 3 2. All right. Okay. Let's move to now next question, everyone. This one, let me move myself here. I think हाँ ये ठीक है ना, ये चल जाएगा. Now pause the video for a minute. अच्छे से इस क्वेश्चन को चारों सेंटेंसेस को रीड करो and then we will be solving it together.
All right. So when we have read all the four sentences, अगर आप first few words पे focus करो, what did we again like? Let's repeat our strategy. First, understand the main topic. यहाँ पे क्या चल रहा है? Main topic is understanding of African culture, how rich it is, even though Western culture denies or doesn't think like that. है ना? ये अपना main topic है. So लिख देते हैं African culture and views about it. Culture and views about it. Now, when we read, let's say, go through all four sentences while reading, क्या हमें कोई hint मिल रहा है जिससे हम एक pair figure out कर सके? However, right? However always connects to opposing sentences, to opposite things. किन दो चीजों को connect कर रहा है? So it says, let's read three first. Their views. Whose views? Contradict the reality. फॉर अ रिच सी यहाँ पे सेंटेंस टू में एक ही पर्सन है हु एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट है तो इसके व्यूज हिज व्यूज होना चाहिए था राइट शुक्वेमेका का व्यूज होना चाहिए था सेंटेंस वन इफ यू रीड कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन राइटिंग कुछ राइटिंग उसमें इसका एग्जाम्पल है द बॉटल लेपर्ड वॉइसेस ये थीम अबाउट द कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ऑफ टू कल्चर्स और टू बैकग्राउंड्स इसमें भी कौन लोग हैं तो एक्चुअली इफ यू रीड इट रेफर्स टू क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स ओनली you what like western culture and their views only so 4-3 is a pair are we sure first of all if no there are more hints which prove that 4-3 is a pair their views contradict the reality for a rich and sustaining local african culture ethos exist for all who care to see and experience 4 में क्या लिखा है western christian concepts tend to deny और फीन मीन्स pretend कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं अच्छा ऐसा हो गया pretending like you know but you're pretending मुझे नहीं पता सो वेस्टर्न क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स हैं दे इधर डिनाई कि भाई उन्हें पता नहीं है या तो वो मना करते कि नहीं ऐसा कोई अफ्रीकन कल्चर जैसी कोई चीज ही नहीं है और दे जस्ट से अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ जेन्युइन एंड्योरिंग इंडिजिनस इन लोकल अफ्रीकन ट्रेडिशन उसके बारे में वो इतनी बात करना नहीं पसंद करते बट फॉर दोज हु केयर सो ये कॉन्ट्रास्ट हो कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड दे ऑलवेज शो हमें दे प्रिटेंड इग्नोरेंस मतलब पता है बट जो प्रमोट नहीं करना है तो मत बोलो but for those who care, एक rich, sustaining local African culture ethos exist to see and experience. वो आप देख सकते हो, right? आपको मानना नहीं अलग बात है, but it is there in front of you. So, however, their views can be contradicted or contradict the reality. Reality में तो एक culture है जिसको जिसको समझना है अफ्रीकन कल्चर उनके लिए देखने एक्सपीरियंस करने के लिए है ठीक है सो ओके सो इसी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे वो लोग मना करते हैं बट एक इतना स्टिल एक रिच कल्चर है जो शायद वो नहीं अप्रिशिएट करते या प्रमोट करते this person Chukwuemeka explores the conflict and casts Western tradition as तो उसने बोला कि उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को देखा कि कैसे एक है still they do so this is the conflict it है but they don't agree and they say that he says that western tradition is condescending मतलब दूसरे कल्चर को नीचा दिखाना एंड वाले या कवर करना कि भाई हमने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं है इज इट ऐसा भी है क्या अनअकोमोड एंड अनएडजस्टिंग कि भाई दो अच्छे कल्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं आपका अच्छा कल्चर है तो आप दूसरे की तारीफ कर सकते हो ऐसा नहीं कि आप दूसरे की तारीफ में आपका कल्चर नीचे हो जाएगा नथिंग लाइक दैट टुवर्ड्स लोकल अफ्रीकन प्रैक्टिस सो दे आर मोर लाइक towards African culture, local practice, they are like that. They are, first of all, वो African practices को कम दिखाते हैं छोटा दिखाते हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं दे डोंट एडजस्ट दे ऑलवेज शो देयर ओन कल्चर मोर और इस सब चीजों को वी कैन प्रूव दिस पर्टिकुलर दिस थीम विद दिस एग्जांपल ऑफ द बॉटल लेपर्ड यूजिंग टू चिल्ड्रन टू बैकग्राउंड्स टू जक्स्टापोज साइड साइड में हमने दो वेरिंग कल्चर वेस्टर्न कल्चर का रखा है एंड अफ्रीकन का रखा है और इसी पर्टिकुलर अफ्रीकन राइटिंग से पता चल रहा है कि हाउ रियली वेस्टर्न ट्रेडिशंस condescends or belittles African practices, African something. So last is an example, first of all. है ना ये एक एग्जाम्पल है बॉटल लेपर्ड कैसे ये दो चीजों को वे दो दो डिफरेंट कल्चर्स को बता रहे हैं उसके पहले मुझे ये कल्चर्स की बात करनी पड़ेगी कि हाउ ही एक्सप्लोर्स दिस कॉन्फ्लिक्ट थ्रू दिस एग्जाम्पल इजंट इट इस पर्टिकुलर थीम को दिखा रहा है सो 4-3 इज वन पेयर राइट 4-3 इज वन पेयर अब हम बोल रहे दोज हु केयर ये कल्चर है और ये कल्चर हमें कहाँ से देखने मिलता है इस पर्सन ने बताया ही एक्सप्लोर्स दिस कॉन्ट्रास्ट और इस पर्टिकुलर राइटिंग में भी ये दिखता है सो 2-1 इज अनदर पेयर so the sequence will be your 4-3-2-1 या आपको सिर्फ एक पेयर फाइंड करना है एक बार 4-3 मिल गया देन इट्स इजियर फॉर यू टू रीड फर्दर ठीक है नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन चल
I'll give you a minute to go through this question and then listen to the explanation. Okay. Now that you have done reading, you must be seeing there's a contrast of two different revolutions or two different जब बहुत सारी नए organizations, नए companies, नए industries start होते तो they give a lot of job to people, whereas in era of smart world, technological world ऐसा नहीं होता है. In fact, they take away jobs क्योंकि automate हो जाती हैं चीजें and all those things. अभी कैसे स्टार्ट होगा? लेट्स से इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर अस टू फिगर आउट बिकॉज देयर आर लेंथी सेंटेंस. तो अगर आप एक पैटर्न नोटिस करो, in the era of smart world, however, and in the era of industrial world, this is a common pattern. Also, however is written. मतलब कि भाई in the era of my parents this used to happen. However, in my era that happens. So, however, to give contrast बाद में ही आएगा. So that makes 2-1 a pair, right? Let's read this first. In the era of industrial revolution, जब industrial revolution बहुत सारे factories, industries, नए नए companies, organization शुरू हुए, the abolition of child labor, poor laws, and the growth of trade unions helped families cope with the pressure of mechanized work. कि भाई इतना hard work भी नहीं होता था, सही laws होते थे कि भाई आपको 8 घंटे ही काम करना है, and used to be good. So basically industrial revolution में सारी positive चीजें बोल रहे हैं. ठीक है. In the era of smart world, however, right, universal basic income is an ineffective instrument which cannot address the potential breakdown of the social contract when large swathes of the population would effectively be unemployed. हम कि उस पर हम नहीं दे सकते कि बेसिक इनकम की क्या है, पर हेड इनकम क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, लाइक हाउ एग्जैक्टली इट इज लाइक रिलेटेड. सो उसका जो like reason hai detail that is given in the, if you read 3 and 4 separately also, 3 talks about, see, inequality negative, right, creeping authoritarianism, right, bolstered by technology and all these things. So हम इसी बारे में बात करें कैसे ये चीजें होती हैं, because इनइक्वालिटी आती है, could be matched by creeping authority, like एक पर्सन पूरी चीजें चला रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक चीज ऑटोमेट हो रहा है एवरीथिंग, दैट इज एबल टू peer into the deepest vestige of our lives, और हमारी लाइफ इन अ वे अफेक्ट होती है, स्पेशली द एम्प्लॉयबल लाइव्स या जो लोग काम कर रहे हैं उनकी. When we read fourth sentence, ये आपको क्या लगता है, ये एरा ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा होगा या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा होगा? इफ यू रीड केयरफुली, If you read carefully, this is a positive sentence. New institutions emerge which recognize ways in which workers could contribute to benefit by economic, कैसे वो contribute कर सकते हैं एक organization में, खुद भी benefit हो सकते हैं by their economic growth rather than if their jobs are automated. मतलब so this is a contrast कि एक इस तरह के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में लोगों को ज्यादा फायदा है, वर्ल्ड इज मच मोर बेनिफिटेड कंपेयर टू एरा ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड. और फिर इसके बाद हम बेसिकली कॉन्ट्रास्ट. Fourth is introducing the concept rather than jobs are automated. Right? कैसे फायदा है? That we are saying in 2 and 1 कि in industrial world अच्छे rules होते हैं, अच्छा work environment, child labor जैसे जो चीजें rudimentary practice वो चले जाते हैं, poor loss चले जाती है, बहुत किसी को hard work करना है, किसी को right amount of hours देना, उसका the person will be paid and all. But when in the era of smart world हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, एंड बिकॉज एक डोमिनेशन होता है कुछ ही लोगों का, एंड दैट इज व्हाई द lives are being affected, isn't it? So 1 and 3 are negative about how these automatic or automated jobs or technology impacts. So 1 and 3 नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं, वैसे 2 और 4 पॉजिटिव भी, अगर आप ये ध्यान दो, isn't it? So 4-2, पहले तो मैं बोलूंगी कैसे लोगों को जॉब्स मिलते हैं, पुराने जो बुरे प्रैक्टिस जाते हैं, बट इन एरा ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, उसके रीजंस हम 3 में बोल रहे हैं. सो 1 and 3 टॉक्स अबाउट स्मार्ट वर्ल्ड, 4 and 2 टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, when people, everyone get jobs, or most of the people get jobs as well as get paid fairly. Yeah, all right. Let's move to next question. So 4-2-1-3 is the sequence in this case. Now let us solve this question, everyone. ना अब हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, isn't it? So अब टाइम है कि आप मुझे सीक्वेंस दो चैट बॉक्स में, आप लिखो अपने आंसर्स, एंड ऑफ कोर्स दोज हु कुड नॉट सॉल्व, आई विल गिव यू द आंसर इन अ मिनट. चलो इसको देखते हैं. नाउ आउट ऑफ 4, दोज हु हैव रेड, आउट ऑफ 4 सेंटेंसेस कौन से 2 सेंटेंस सिमिलर तरीके की बात कर रहे हैं?
That is option, that is sentence 1 as well as sentence 4. The woodlands canopy. What is canopy? The cover. जंगल होता है, बहुत सारे trees होते हैं. So the cover of the jungle receives most of the sunlight that falls on the trees. And when we read all second, third, fourth sentence, the sunlight, sunshine, हम सिर्फ fourth में ही बात कर रहे हैं और कहीं बात नहीं कर रहे हैं. So that makes 1 4 और 4 1 a pair. So जैसी sunlight falls on the trees, तो बहुत सारे insects fly in the sunshine, अब तो उसकी तरफ भागने लगते हैं, राइट, कैनोपी की तरफ. कैनोपी की तरफ जो हम इधर बात कर रहे हैं. सम फॉलिंग प्रे टू स्विफ्ट्स, और कुछ बीच में उड़ते उड़ते उनको स्विफ्ट्स खा लेते हैं, स्विफ्ट्स एंड सॉलोज खा लेते हैं. अब ये स्विफ्ट्स क्या होते हैं? व्हाट इज इट? लगे बीच में पकड़ रहे हैं इंसेक्ट्स को, ये है क्या? सो उनका स्विफ्ट्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है 2 और 3. द स्विफ्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड हियर, दिस इज द इंट्रो, और उनके बारे में लिखा है 2 and 3 में. अब आप मुझे बताओ 2 होगा, 3 होगा, या 3 या 2 होगा? इन 2 और 3 को इंडिविजुअली आप पढ़ो पहले तो. डू नॉट मिक्स इट विद 1 and 4 बिकॉज इट विल कंफ्यूज यू, एंड देन ऑफ कोर्स मेक द पेयर. तो पहले हम लिख देते हैं पेयर 1 4, राइट. अब अपने पास 2 बचे हैं. इफ यू रीड केयरफुली 2 and 3 विद देयर स्ट्रीमलाइन बॉडीज, देखो देयर से आप लोग कैसे स्टार्ट हो गए, तो स्विफ्ट्स लिखे, हाँ बट स्विफ्ट तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है ना, तो अब इसके बाद मैं देयर बोल सकती हूँ, इजंट इट? तो विद देयर स्ट्रीमलाइन बॉडीज स्विफ्ट्स आर अजाइल फ्लायर्स आइडियली अडेप्टेड टू ट्विस्टिंग एंड टर्निंग. सो स्विफ्ट्स क्या होता है? स्विफ्ट्स भी एक फ्लाइंग इंसेक्ट्स तरीके के होते हैं जो कि दे ट्विस्ट एंड टर्न, लाइक दे कैन फ्लाई फास्टर, दे हैव मोर मैन्यूवरेबिलिटी through the air as they chase flying insects. The creatures that form the staple diets, और insects उनके staple diet होते हैं. staple मतलब रोज ये यही खाते हैं. और इस डाइट के लिए ना सी एंड में क्या लिखा है? insects are their diet. बाकी उनके बारे में लिखा है कि this kind of flyer, that kind of flyer, और लास्ट में लिखा है staple diet. So if you read now 2, actually it gives you more detail on their diet कि swifts do not confine themselves to woodlands. So इसलिए वो सिर्फ उसकी जंगल में रहेंगे for their food or for their insects, but hunt wherever there are insects. जहां पे भी उनको मिलेगा वहां घूमते रहते हैं, ऐसे नहीं कि उधर पे आई और वेट करेंगे नेक्स्ट डे का. नो. So this is their staple diet, and for their staple diet they go everywhere or wherever they can find their food, right? So staple diet के बारे में ये एक particular लाइन है, ना कि स्विफ्ट्स के बारे में. एक्चुअली मेन उनके स्विफ्ट्स की डाइट के बारे में फोकस है. सो 3 2 should be a pair. Yes, everyone. Okay, let's move to next question. This one. Let me just erase this so that you can solve it. Yeah. Also, I'll also move. ठीक है, चलो ये देखो. I'll give you a minute to pause, go through the question, then we'll solve it together. Okay, now that you have read all 4 sentences, let's solve it. So it can become, what can become, but there is a, this is not right. The role of moderators कहाँ आएगा? मॉडरेटर मतलब बेसिकली 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है तो बीच में कोई लोग संभालने हैं, दैट इज मॉडरेटर. तो वो कहाँ आएगा? सो क्लियरली व्हेन वी रीड हियर, ए इज द ओपनिंग सेंटेंस. करेक्ट ना. ए क्या बात कर रहा है? कमेंट्स हैव द पोटेंशियल टर्न अ न्यूज़ वेबसाइट इनटू डेमोक्रेटिक पॉलीफनी. पॉलीफनी का क्या मतलब होता है? अगर आपको, अगेन स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है कैट में, आप अग्री करो या ना करो. इफ यू नो पॉलीफनी यू विल नो व्हाट विच इज द नेक्स्ट सेंटेंस. इफ यू डू नॉट नो पॉलीफनी, थोड़ा आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, शायद आपको आंसर मिल जाए, बट आपका टाइम वेस्ट हो गया. करेक्ट. सो पॉली मीन्स मेनी, फोनी मीन्स साउंड, बहुत सारी साउंड्स की. जब कोई भी वेबसाइट में भी, ट्विटर फॉर एग्जाम्पल, एक्स जो अभी हो चुका है, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत लोग बात करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट, तो उससे क्या डेमोक्रेट मतलब बहुत सारे ओपिनियंस बनते हैं. पॉलीफेनी क्या है अगर आपको पता है तो एक्चुअली 3 is a description of this word polyphony, that it can become a site. What can become a site of this website, right? It can become a site for multiple concurrent debates. एक साथ बहुत सारी debates हो रही हैं. Registering dissent. Dissent is disagreement. कि disagreement, disagree लोग करें, which is okay. ना, nothing wrong with it. अगर हम रिस्पेक्टफुली एक दूसरे डिसअग्री कर रहे हैं, कोई मुझे रिस्पेक्टफुली कमेंट से पूछ रहा है, मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, नेक्स्ट सेशन में फिर से बता देना, मैम ये कैसे होगा, मुझे तो लग रहा है CBDA विल बी द सीक्वेंस. दैट्स ओके. फॉर परस्यूइंग एन आइडिया एंड फाइनली फॉर बिल्डिंग अ पॉलिटी ऑफ इन्फॉर्म चॉइसेस, ताकि फिर से हम डिस्कस करें चीजें और हमें पता चले कि व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द राइट थिंग. सो पॉलीफनी मीन्स बहुत सारी आवाज होना, बहुत सारे डिबेट्स होना, बहुत सारी बातें होना. इतना डिस्कस, लॉट ऑफ डिस्कशन, disagreements is fine, but when these discussion
transforms into cacophony, but there is also a danger of descending it to cacophony. What is cacophony? Unnecessary noise. बेकार की शोर शराबा. If readers do not express, अगर opinions आप express कर रहे हो, even if in against, that's okay. But that in a language that behooves the requirements of a matured public sphere. अगर आप एक पब्लिकली कैसे डिसएग्री करते हैं, अगर आपको वो नहीं पता है, अगर आप किसी को बहुत ही रूडली बात कर रहे हो और कुछ लेकिन बहुत गलत तरीके से, तो वो फिर गलत तरह का डिस्कशन हो गया ना. कोई एक दूसरे को कुछ चिल्ला के बोल रहा है, रूडली बोल रहा है, गाली देके, तो वो उससे कोई फायदा नहीं, वो झगड़ा ही होगा. उससे कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन एक दूसरे सीख नहीं पाएंगे हम लोग. जब हम अगर हम एक टोन में अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, तो विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम ईच अदर. सो इट कैन डिसेंड टू कैकोफनी, जहां पे कैकोफनी वो होता है जब डिसएग्रीमेंट्स डिबेट्स तो हो रहे हैं बट सही लैंग्वेज में नहीं हो रहे हैं. और जब भी ऐसा होता है किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी वेबसाइट पे कैकोफनी आती है, तब मॉडरेटर्स का काम पड़ता है कि द रोल ऑफ मॉडरेटर इज टू रिटेन द स्पेस, ताकि हम स्पेस रखें. कोई अगर रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही उसके लिए. एंड रिजेक्ट द दैट वॉइसेस दैट ब्रीड कैकोफनी. फॉर एग्जांपल एक्स में, ट्विटर में बहुत लोग का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, कुछ ज्यादा ही वो लोग कर देते हैं, समझो, कुछ ज्यादा ही मतलब गलत तरीके से बात करना, कुछ ज्यादा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करना अननेसेसरीली, फिर उनका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है. इजंट इट? वो सोशल मीडिया ध्यान रख लेता है. सो जब ऐसी चीजें होती हैं, जब तक पॉलीफनी है, डिबेट्स हैं, रिस्पेक्टफुली, इट्स ओके. बट जैसे ही कैकोफनी में होता है, तब मॉडरेटर्स आके, सो दिस इज द सोल्यूशन. जब तब मॉडरेटर्स आके इसको हटा देते हैं कैकोफनी को, और पॉलीफनी को they retain, isn't it? So D has to come at the end. There's also a danger of it descending to cacophony. What can descend to cacophony? Polyphony. कि जब debates हैं, ये सारी चीजें ये हो सकता है. So this it. So C B is a pair. Also AC is one pair because A में जो polyphony word है उसका meaning description C में दे रहा है. So A C B D. Got it everyone? Clear है सबको? ठीक है. सो ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व 3 थिंग्स एवरीवन. फर्स्ट, क्विक कॉम्प्रिहेंशन. मैंने एक बार में पढ़ा और हमें समझ आ गया, जिसके लिए रीडिंग चाहिए. सेकंड, वोकैबुलरी, राइट. कैट आपकी वोकैबुलरी चेक करती है इनडायरेक्टली. एंड थर्ड, अ पैटर्न. फिगरिंग आउट अ पैटर्न. इज दिस प्रॉब्लम टू सोल्यूशन? इट इज कॉन्सेप्ट जनरल टू डिटेल्स. व्हाट इज इट? एंड देन फिगरिंग आउट दोस कीवर्ड्स. लाइक यहाँ पे सेकंड में आप देखो बट लिखा है. हमने ऑलमोस्ट सारे सेंटेंस में बट, हाउएवर, दिस, दैट, हमें कुछ ना कुछ कीवर्ड मिला, और ये हमेशा होगा. तो इसलिए कैट क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करते हो, पैराजम्बल्स को, स्टार्ट विथ मेकिंग अ पेयर रादर देन लुकिंग फॉर एन ओपनिंग सेंटेंस, एंडिंग सेंटेंस. लाइक एक आधा में हमें मिला ओपनिंग, किससे स्टार्ट होगा, बट बहुत सारे में हमें नहीं भी मिला. इजंट हमें पेयर मिला क्या, ये दोनों साथ में, दोनों सेम बात कर रहे हैं, उससे हमने फिर सीक्वेंस बनाई, राइट. सो फोकस ऑन दीज फ्यू थिंग्स. पैराजम्बल की जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जिस लेवल पे आने लगा है लेटली, like the same skills are not going to work. Like few things are common, but then you have to learn or focus on certain things in order to do really well in CAT 2024. Also जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, पैराजम्बल एक कॉमन टॉपिक है जो 100% आएगा ही, राइट. 1000 चेंजेस हुए हैं पर पैराजम्बल कभी चेंज नहीं हुआ. मतलब पैराजम्बल हर साल आता ही आता है. इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 10 years. सो वी कैन एक्सपेक्ट ईजिली लाइक मिनिमम 2 to 3 पैराजम्बल्स पर सेक्शन. और ये स्कोरिंग होते हैं, तो सॉरी, पर स्लॉट. सो ये स्कोरिंग होते हैं, तो डेफिनेटली आप अगर इनको ध्यान से कुछ चीज़ों को भी देखोगे इस क्लास में, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं. Now there are certain skills you need to develop or you need to understand the value of to do well. First of all, vocabulary. CAT का सिर्फ पैराजम्बल ही नहीं, कोई भी दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन इन VARC, बीट समरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, विच एवर दैट इज, अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो कैट के क्वेश्चंस में आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे. बिकॉज कैट मेनली लैंग्वेज ऑफ इट्स क्वेश्चंस, लैंग्वेज ऑफ इट्स पैसेज ही डिफ़िकल्ट करते चले जा रहा है, राइट. चीज़ें अप्रोच अभी भी वही सेम है, बट लैंग्वेज हार्ड होती चली जा रही है, इसलिए लोगों के अंदर डर बढ़ गया. सो वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करोगे तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है. सेकेंडली, वेन एवर स्टूडेंट सॉल्व लाइक पैराजम्बल, 2 सेंटेंस में अगर सेम तरीके के वर्ड्स दिखते हैं तो मुझे लगता है यार ये 2 सेम तरीके के वर्ड्स हैं, तो ये एक पेयर बना लेते हैं. पेयर एज कि भाई CD इज अ पेयर, सेम टाइप के, तो देन विल फाइंड द सीक्वेंस इजीली. बट कैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू थिंग्स ऑन प्लैटर मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना. आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ट्रिक होगी, तो इसलिए मीनिंग मैच पे आप थोड़ा डिपेंड करो रादर देन वर्ड मैच. 2 वर्ड्स मैच कर रहे हैं, उस बेसिस पे शायद वो 2 सेंटेंस साथ में ना हो.
पर दो सेंटेंस के सेम मीनिंग, एक जैसी बात करें, एक टॉपिक पे बात करें, डेफिनेटली वो एक पेयर बन सकता है. सो टेक केयर ऑफ द मीनिंग मैच. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोनाउंस आर योर फ्रेंड्स. अगर आप लास्ट 2 years के क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें सारे पैराजम्बल्स अगर आप असेंबल करके सॉल्व करो, सो प्रोनाउंस आर समथिंग आई वुड से आर चेक्ड 70% ऑफ टाइम्स. प्रोनाउंस की हेल्प से आप एटलीस्ट 70 to 80% टाइम्स आप like पेयर बना पा रहे थे. यू विल सी दैट इन टूडेज सेशन एज वेल बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व सम पास्ट ईयर क्वेश्चंस. So pronounce like words like it, that, those, these, etc. It refers to a subject, that is pronoun. So आप थोड़ा ये ध्यान रखो कि ये it किसको रेफर कर रहा है, that किसको रेफर कर रहा है, these किसको रेफर कर रहा है, these kind of words. Transition words, for example, and. सो एंड जनरली कनेक्ट्स टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव, मतलब दोनों सेम टाइप के सेंटेंस होंगे. इफ़ आई से यू आर सच अ नाइस पर्सन एंड वेरी वेल बिहेव्ड, तो मैं आपके बारे में दोनों अच्छी चीज़ें बोल रही हूँ. सच अ नाइस पर्सन एंड वेरी वेल बिहेव्ड. इफ़ आई से यू आर सच अ नाइस पर्सन बट, इफ़ आई यूज बट वेरी टू द पॉइंट, मतलब अच्छे तो पर हमेशा टू द पॉइंट बातें करते हो, तो शायद लोगों को रूड लग जाए ऐसा कुछ. तो नेक्स्ट सेंटेंस में मैं कुछ नेगेटिव चीज़ें बता रही हूँ आपके बारे में. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव. सिमिलरली बट, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं. दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये थोड़ा आप ये स्पेशली 3 पॉइंट्स का ध्यान रखो बिकॉज कैट के 99% क्वेश्चंस में आपको ये 3 चीज़ें ही काम आने वाली हैं. आप कैट 24 में अगर आप ये 3 चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपके सारे आंसर सही आएंगे. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेंसेज. इन केस 2 sentences are in past tense, 1 is present tense, so then make sure you read that as well. That will help you in making the sequence, right? अगर tense given है तो. लेकिन CAT 2023 लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो टेंस के बेसिस पे भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए. अगर आपने वो ध्यान दिया तो आपके लिए देन फाइंड करना आंसर बहुत सही है. अभी सारी चीज़ें कैसे चेक की जाती है, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है, फॉर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व questions. So question number 1, everyone. Algorithms hosted on internet are accessed by many. So biases in AI models have, अब देखो, algorithms hosted by on the internet are accessed by many. एक सेकेंड, मतलब जो भी एल्गो चल रहा है इंटरनेट का, हम भाई सारी चीज़ें हमें पता होती है कि ठीक है इससे करना है, एक आइडिया होता है एटलीस्ट. So biases in AI models have resulted in much larger impact, adversely affecting far larger groups of people. As in, biases का क्या मतलब होता है? Bias means, for example, it larger impact affecting larger groups of people. मतलब for example, अगर मैंने कुछ गलत बता दिया है, मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया, तो अगर इंटरनेट पे वो चीज़ नहीं हुई है तो 4 लोगों को पता, पर इंटरनेट पे तो 400 लोगों को पता है. तो इस तरह की चीज़ें जल्दी लोगों को पता चलती है. ठीक है ना. इफ वी रीड, देखो अभी इन सब पे आप ध्यान दो. इसमें कुछ आपको दिख रहा है जिसपे आप पेयर बना सकते हो. फिर फोकस दो, डिस्पाइट देयर वाइड स्प्रेड. तो ये देयर किसको रेफर कर रहा है? तो इन अ वे आपको प्रोनाउन वाला रूल हेल्प हुआ इधर पे, राइट? हुआ. दो क्या है, ट्रांजिशन वर्ड है, दो कनेक्ट्स ऑपोजिट नेगेटिव लाइक पॉजिटिव नेगेटिव तरीके के सेंटेंसेस, तो वो हो सकता है. सो व्हेन वी रीड ऑल द सेंटेंसेस 2 या 3 से तो स्टार्ट नहीं होगा ये सीक्वेंस, 1 या 4 से होगी. तो 1 के बाद आई शुड एक्चुअली रीड 4 एंड नॉट 2 and 3, isn't it? Or then we'll figure out the impact of biased decisions made by humans is localized. So हमारे डिसीजंस, कोई मेरा बायस डिसीजन है फॉर एग्जांपल, राइट, कोई भी गलत डिसीजन है, तो जनरली उसका इम्पैक्ट लोकलाइज होता है. मेरे आसपास के 4 या 5 लोग हैं, उनको ही पता होगा. एंड जोग्राफिकली कन्फाइंड, कि भाई यहीं पे पता है लोगों कि हाँ शी टुक रॉन्ग डिसीजन. बट विद द एडवेंट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आ चुका है, the impact of such decisions is spread over a much wider scale. तो भाई हम सब फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट वाली रील्स पे ही क्लिक करते हैं, उन पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अगर, तो AI उस तरह से फिर समझता है लोगों की, ठीक है लोग की सोच ऐसी है, और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये बनती है. सो देन जो भी डिसीजंस वाइडर स्केल में हैं, और अभी हमने ऊपर फर्स्ट में क्या पढ़ा कि इट इज़ एक्सेस्ड, AI के जो मॉडल्स हैं इट एक्सेस, इट हैज़ अ लार्जर इम्पैक्ट. ये दोनों कहीं ना कहीं सेम तरीके की बातें कर रहे हैं. सो कैन वी से 4-1 इज अ पेयर बिकॉज ऑफ मीनिंग मैच, बिकॉज दोनों का सेम मीनिंग है, isn't it? अभी हमने सीखा था कि 2 सेंटेंस अगर सेम तरीके की बातें कर रहे हैं तो मीनिंग मैच हो सकता है. ऑल्दो लेट्स से इफ यू आर नॉट वेरी श्योर क्या 2 और 3 पढ़ने के पहले कैसे डिसाइड कर ले, तो ऑफ कोर्स लेट्स रीड 2 and 3 एज वेल.
तो हम बोले कि वैसे तो कोई भी आपका डिसीजन का इम्पैक्ट लोकलाइज्ड एक सर्टेन जोग्राफी में होता है, बट एआई या इंटरनेट की वजह से वाइडर स्केल में इसका इम्पैक्ट हो जाता है। तो वैसे तो अल्गोरिथम्स होस्टेड ऑन इंटरनेट आर एक्सेस बाय मेनी, से जो भी बायसेस कुछ भी आपका डिसीजन है सबने एक साथ मिलके किसी लाइक कैसे लेट्स से किसी हम पर्टिकुलर रील्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंसर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसका एक लार्जर इम्पैक्ट होता है दूसरे लोगों को भी, जिनको इंटरेस्ट है उनको भी वही लोग दिखते हैं, right? So it affects larger group of people. ठीक है. Now what we are saying further, let's read 2 and 3 now. Though algorithmic bias is the popular term, right? यहाँ पे जो हम biases की, तो algorithm bias एक popular term है. The foundation of such bias is not in algorithms, but in the data. Algorithms are not biased, data is. This is an important line. हम बोले कि algorithm bias तो एक बहुत popular term है कि यार algorithm की वजह से आपका content इतना अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, पर हम बोले कि algorithm में कुछ नहीं होता है, डेटा में कुछ होता है। मैंने कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ बोल दी तो वो तो यार इंटरनेट हो ना हो, ज़्यादा लोग उस चीज़ पे ध्यान देंगे, जब तक आपने शांति से रहने कोई ध्यान नहीं देगा, इजंट इट? तो ऐसे ही होता है। सिमिलरली डेटा, आपको डेटा देना पड़ता है कि एल्गोरिथम पकड़े उसको, as algorithms merely reflect persistent patterns that are present in the training data. तो जो डेटा में है कि भाई ऐसी चीज़ जिसको लोग ज़्यादा देख रहे हैं, आप उसको ही और पुश करो, तो कुछ कंट्रोवर्शियल होगा तो एल्गोरिथम भी उसी कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करेगा, पुश करेगा. सो डिस्पाइट देयर वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट, राइट, एल्गोरिथम्स, यहाँ पे देयर रेफर्स टू एल्गोरिथम्स, कि एल्गोरिथम का एक इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट इज़ ईजियर टू फिक्स एआई. तो ये जो एल्गोरिथम है उसको फिक्स भी करना आसान है, कि भाई हर कोई नेगेटिव कंटेंट जिसको बहुत ट्रैक्शन मिल रहा है, प्रमोट हो रहा है, उसको मत करो, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड से वो हम फिक्स कर सकते हैं. बट एज इट इज़ सिंपलर टू आइडेंटिफाई द फॉर्मर, कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई मशीन लर्निंग से, जो भी आपके सॉफ्टवेयर से जो भी समझ है आप कर सकते हो. बट टू ट्राई टू मेक पीपल अनलर्न बिहेवियर्स लर्न ओवर जनरेशन, कि भाई कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना है, करना है, एंटरटेनमेंट की तरफ कम ध्यान होना चाहिए, लर्निंग की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अनलर्न करवाना लोगों को और सब करने थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो 2 and 3 टॉक्स अबाउट कि हाउ बायस तो एक पॉपुलर, पर बायस एल्गोरिथम में नहीं है, बायस डेटा में है, और इसलिए एल्गोरिथम बायस ठीक करना आसान है, पर डेटा जो है उस चीज़ को ठीक करना मुश्किल है, क्योंकि लोग तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं जहाँ पे कुछ सेंसेशन है, कुछ नया है, फॉर एग्जाम्पल दैट, इजंट इट? सो 4-1 इज क्लियरली अ पेयर. लेट्स गेट बैक. 4-1 व्हाट इज द सीक्वेंस? 4-1 इज क्लियरली अ पेयर बिकॉज दोनों बात करें कैसे इंटरनेट की वजह से, एआई की वजह से इट हैज़ अ लार्जर इम्पैक्ट, राइट, मच वाइडर स्केल पे लोग देखते हैं, सेम तरह की बात है. और फिर हम बोले कि ये जो बायस है ये एल्गोरिथम का नहीं, जो अभी तक हम 1 में बात कर, 1 सेज कि भाई ये बायसेस इन एआई मॉडल्स की वजह से ऐसा लार्ज इम्पैक्ट होता है, पर ये बायस एल्गोरिथम का नहीं है, ये डेटा का है. इसलिए एल्गोरिथम को तो हम ठीक कर सकते हैं, पर जो डेटा है, जिस तरह का कंटेंट लोग पुट कर रहे हैं, उसको आप जल्दी ठीक नहीं कर सकते. दैट इज कॉमन बिहेवियर. सो 3 हैज़ टू कम एट द एंड. 4-1-2-3 इज अ सीक्वेंस. गॉट इट एवरीवन? ठीक है. Let's come to question number 2, right? That is from CAT 2023 slot 1 again, right? हम slot 1 के questions कर रहे हैं. Now let's read this. If you really see carefully, sentence 1 or sentence 4 has questions, where sentence 2 and 3 are maybe answers of these questions. So let's read 1 and 4 first again. What precisely are the unusual elements that make a particular case so attractive to a certain kind of audience? It might be a particular savage. It refers to what? Isn't it? Unsolved and perhaps solvable case, we do not know, right? Something that ordinary murder does not. Why are some crimes destined for perpetual re-examination and others logged into? पहले सेंटेंस का समझ लेते हैं मीनिंग. परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअल या एंडलेस, कि क्यों कुछ क्राइम को तो एंडलेस री एग्जामिनेशन चलता रहता है, कि फिर से लेकिन दृश्यम 1, दृश्यम 2, दृश्यम 3 वो केस खुलता ही रहता है, जब तक वो फाइंड नहीं कर लेंगे मुझे लगता है, लेकिन डेड बॉडी, तब तक दृश्यम 3-4 आती रहेगी. पर कुछ केसेस दे आर लॉक्ड इनटू परमानेंट ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर मतलब भाई अनक्लियर, कि पता नहीं होते, ना उन पर कोई इतना कोई रिसर्च कर रहा है या उनको वापस कोई ओपन कर रहा है कि ठीक है यार बंद करो. तो ऐसा क्या होता है? तो हमारे कि मे बी, अब आंसर है कि मे बी वॉट, क्या उनमें ऐसे अनयूजुअल या डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसे कुछ एक केस इतना अट्रैक्टिव बन जाता है ऑडियंस के लिए, कि लोग लगता है वाह इसको तो पता करना है ना, इसके तह तक जाना है. सो देन दीज अनयूजुअल एलिमेंट्स जो हैं वो हम यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, कि दीज अनयूजुअल एलिमेंट्स कैन बी, कि इट इज़ सो सैवेज, मतलब इतना एनिमलिस्टिक तरीके से किसी को मारा गया, इट माइट प्रोड्यूस सैवेज. और अनफेदमेबल मीन्स
नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मे बी, राइट, आप बोल सकते हो, सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो या तो बहुत ही अलग ही लेवल की डीपली मॉरल करप्टनेस की, मतलब कुछ ज़्यादा ही भाई समझ बड़ा क्राइम हो गया है, वेरी हीनस क्राइम हो गया, वेरी ऑफन इट हैज़ समथिंग टू डू विद प्रिसाइज अमाउंट ऑफ मिस्ट्री इन्वॉल्व। और कभी कुछ मिस्ट्री होती है जो नहीं पता चलती है, और इस मिस्ट्री को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, मिस्ट्री समथिंग विच इज अनसॉल्व या अनसॉल्वेबल केस ऑफर समथिंग दैट जो ऑर्डिनरी केस मर्डर में नहीं होता है, और इसीलिए उन केसेस पे ज़्यादा ध्यान होता है, इजंट इट? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्यों कुछ क्राइम को हमेशा हम री एग्जामिन करते हैं वैस अदर क्राइम्स को नहीं करते हैं। एंड ऑप्शन 1 से इसकी उनमें क्या ऐसे अनयूजुअल एलिमेंट्स, और वो अनयूजुअल एलिमेंट्स हम सेंटेंस 2-3 में बोल रहे हैं। सो इसका क्या सीक्वेंस होगा, 4-1-2-3। डिड यू गेट एवरीवन? अब इसमें हमें क्या हेल्प किया, प्रोनाउन अगेन, अगर देखो सेंटेंस 2 है ना, और क्योंकि फिर हमें मिस्ट्री अनसॉल्वेबल की बात करें, 2-3 वॉज अ पेयर, करेक्ट। सो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको प्रोनाउंस या ट्रांजिशन वर्ड्स या टेंसेस कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन, फ्रॉम कैट 2023 स्लॉट 2, लेट्स रीड दिस अगेन। अब देखो इसमें ऑल्दो नॉनदलेस ट्रांजिशन वर्ड्स है ना, ऑल्दो कनेक्ट्स टू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस, नॉनदलेस कनेक्ट्स अगेन लाइक टू कॉन्ट्रास्टिंग, कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। लाइक इज जनरली यूज्ड फॉर एग्जाम्पल, या तो लाइक दिस हमें कि भाई जैसे ये लाइक द एंड्स, तो आइडियली 4 से शुरू होना चाहिए सेंटेंस, आइडियली 4 शुड बी आर ओपनिंग सेंटेंस, बट ऑलवेज जब आप शुरू करो तो फिक्स मत रहो, अब पढ़ना शुरू करो जो आपको ठीक लगता है, एंड धीरे धीरे देखो क्या पेयर बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 4 से, देन विल सी। ऑल्सो ये क्वेश्चन देखो, एक तो ये ट्रांजिशन वर्ड के हिसाब से सॉल्व होगा फर्स्ट, राइट, जो मैंने आपको थोड़े टिप्स बताए थे। दूसरा एक क्वेश्चन में एक और स्किल लगेगी, दैट इज वोकैबलरी की, जो टिप नंबर 1 थी कि वोकैब के बिना तो आपका वोकैब हार्ड ही लगने वाला है। यू हैव टू, हाउ वुड यू इम्प्रूव योर वोकैब, बाय रीडिंग रेगुलरली, डेली आप 2 से 3 आर्टिकल्स पढ़ोगे, योर वोकैब विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली, जस्ट डू द वर्क, रिजल्ट्स विल बी टेकन केयर ऑफ। So sentence 4, let's read. Human consciousness is often called an emergent property of the human brain. So what is emergent property, students, right? So emergent property of human brain, या emergent property in general in scientific terms means something which happens which is a combination of efforts. मतलब अकेले नहीं कर सकते, अगर आप अगर 4-5 फॉर एग्जाम्पल चीज़ें साथ में हो रही तभी वो चीज़ हो पाएगी। सो दैट इज इमर्जेंट प्रॉपर्टी, राइट, एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग इज नॉट जस्ट मेरा मुंह चल रहा है तो मैं बात कर, दिमाग भी चल रहा है मेरा, इजंट इट, सामने कुछ कंटेंट भी हो, देख के पढ़ भी रही, तो देर आर 3 to 4 थिंग्स, दैट्स वाई आई एम एबल टू टॉक। मैंने कुछ एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल मेरा टीचिंग का है, राइट, मैंने कुछ तैयारी की होगी, ऑल दीज थिंग्स, उसकी वजह से मैं इतना स्मूथली इतना फ्लुएंटली इस क्वेश्चन के बारे में बात कर पा रही हूँ। सो इमर्जेंट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स, नॉट सिंगल थिंग, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स, जहाँ पे 3-4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से वो काम हो पाता है। ऑल राइट, सो नाउ व्हेन वी रीड, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड्स दैट मेकअप अ कॉलोनी, कॉलोनी मतलब पूरे एंड्स का ग्रुप समझो, जैसे एंड्स एक अपनी कॉलोनी मिल के बनाती है, एक अकेली एंड कॉलोनी नहीं बना सकती। सिमिलरली नो सिंगल न्यूरॉन, राइट, मैं ये पहले क्यों पढ़ रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे एंट के मेटाफोरिकली यूज़ करके न्यूरॉन को इंट्रोड्यूस किया गया है, और फिर इन न्यूरॉन्स के बारे में, ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं 2-3 में। सो 1-2-3 शुड बी द आइडियल पेयर, बट लेट्स रीड, राइट, लेट्स रीड अगेन, लेट्स बी नॉट वेरी फिक्स ऑन दैट। So, no single neuron holds a complex information like self awareness, hope और तो वैसे ही जैसे एक अकेली एंट एक पूरी कॉलोनी नहीं बना सकती, वैसे ही एक सिंगल न्यूरॉन की वजह से हम अवेयर नहीं हो सकते अबाउट समथिंग, या हम होपफुल, प्राइड, ये सारे जो इमोशंस हमारे एक न्यूरॉन से नहीं होते हैं, इट हैज़ टू बी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। तो दैट मीन्स ये कहाँ पे लिखा है, 2 में कि 3 में, एक्चुअली 3 में लिखा है। सो 4-1-3, nonetheless it one single neuron can't do it, but all neurons in the nervous system generate complex hue, but सब मिलके एक इस तरह का इमोशन जनरेट करते हैं, लाइक फेयर, जॉय। तो एक नहीं करता है, all do it, all neurons, और फिर nonetheless है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है, 1-3 is for sure a pair, none of which can be attributed to single neuron। तो हम इस तरह के जो फेयर, जॉय, जो भी इमोशंस हैं, ये हम किसी एक न्यूरॉन को क्रेडिट नहीं दे सकते, एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि भाई इसकी वजह से, इट हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल न्यूरॉन्स। Although the human brain is not yet understood enough to identify mechanism, पर हमें ये समझ नहीं है कि जैसे लाइक एग्जैक्टली कैसे सारे न्यूरॉन वर्क करते हैं, सारे जो इमरजेंस फंक्शन हमको ये समझ नहीं है ह्यूमन ब्रेन में, हाउ इट एग्जैक्टली इट वर्क्स।
Most neurobiologists agree that complex interconnections among the parts give rise to quality, but this is the explanation most neurobiologists give or have, right? So हमें this is how it works, but ये चीज़ हमें exactly अभी हमने ठीक से समझी नहीं है. This is what scientists ने समझी नहीं है, जो उन्होंने समझा है वो ये है. So of course 2 तो चलो एंड में आएगा कि हम न्यूरॉन को इधर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 में. 3 में हम बोले कि एक 1 में भी हम बोलेंगे एक न्यूरॉन से नहीं हो रहा है, बट सारे न्यूरॉन्स का चाहिए. और एग्जैक्टली पूरा जो सिस्टम है हमें अभी भी थोड़ा थोड़ा ही पता है. 2 में हम बोले हमें ठीक से नहीं पता है. तो ये सारी चीज़ें हम एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, दैट इज़ आवर मेन टॉपिक स्टूडेंट्स, इमर्जेंट प्रॉपर्टी है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो 4132 विल बी द सीक्वेंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 14th नहीं 4th, कैट 2023 का स्लॉट 2 का चौथा क्वेश्चन. इसके अगर आप फर्स्ट वर्ड्स पे अगेन ध्यान दो, हाउ एवर इज रिटन, isn't it? ठीक है. नाउ देयर व्यूज, देयर मतलब किसके व्यूज, तो प्रोनाउन है ना, ट्रांजिशन वर्ड्स, ये सब आपको हेल्प कर रहे हैं. एक और चीज़ आई वॉन्ट टू शो यू, वॉइसेस दिस थीम, मतलब विच थीम, तो अगेन प्रोनाउन विच थीम, इजंट इट? तो इन सब में तो एक तो 1 या 3 विल नॉट बी ओपनिंग सेंटेंस. ऑल्सो 2 ऑल्सो लुक्स लाइक एन एग्जाम्पल की शिक वी मेका एक्सप्लोर्स अ कॉन्फ्लिक्ट एंड काज, लाइक कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, तो वो कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली 4th में लिखा है वेन यू रीड. सो 4 अगेन has to be our opening sentence. Western Christian concepts tend to deny or feel मतलब pretend. जैसे अगर मैं किसी को जानती हूँ, आप मुझे पूछोगे मैं आप उनको जानते हो, कौन, मैं तो नहीं जानती, कौन कौन. So maybe I'm just feeling ignorance, I'm pretending भाई I don't know the person for whatever reason. So Western Christian concepts tend to deny or pretend ignorance about the existence of genuine and enduring indigenous African tradition. That means African tradition is there, but Western culture doesn't really accept it, or at least pretend that they do not know anything about it. ऐसा कुछ exist भी करता है क्या, क्या है ये African tradition, you know, they generally behave like that is what sentence 4 says. ठीक है. However, their views, their मतलब इन्हीं के, like you know, Christian concepts या जो वो सोच रहे हैं, right? So their views कॉन्ट्रडिक्ट्स, पर रियलिटी तो ये नहीं है. जो डिना वो मना कर रहे हैं, पर दे टेंड टू डिनाई कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं अफ्रीकन ट्रेडिशन, पर उनका जो व्यूज़ है वो रियलिटी से बहुत ऑपोजिट है. बिकॉज फॉर अ रिच, फॉर इज बिकॉज हियर, फॉर मीन्स बिकॉज फॉर रिच सस्टेनिंग लोकल अफ्रीकन कल्चरल इथोस एग्जिस्ट फॉर हॉल, मतलब जो अफ्रीकन कल्चर है वो तो एग्जिस्ट करता है. फॉर दोज हु केयर, वांट टू सी, वांट टू एक्सपीरियंस, वो कर सकते हैं. Even if these Western Christian concept deny it or pretend ignorance कि हमें पता नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, it doesn't matter, it exists for those who care to see and experience, right? तो ये तो होता ही है. So their views refers to this. Okay, so 4-3 is a pair. अब ना 2-1 are examples of these कि Shukwi Meka explores the conflict जो अभी इधर पे हम बात कर रहे हैं 4 and 3 में कि these people deny, see, although these people deny but this particular culture exists, right? ये तो है. तो इसने ये इस चीज़ को, इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर किया है एंड कास्ट दी वेस्टर्न ट्रेडिशन, और वेस्टर्न ट्रेडिशन को बोला कॉन्डिसेंट बी लिटिल करना, दूसरों को इंसल्ट करते रहना ऑल द टाइम, एनवेलपिंग एंड अनअकोमोडेटिंग टूवर्ड्स लोकल अफ्रीकन, कि भाई एडजस्ट हमारे साथ नहीं करते हैं, हमारे साथ इतने रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो लगे इनका थोड़ा ऐसा ही इनका कल्चर. एंड देन सो दिस इज एग्जाम्पल 1. एंड इस सेम थीम को, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि दैट वेस्टर्न लाइक ट्रेडिशन इज कॉन्डिसेंडिंग, अनअकोमोडेटिंग, सेम थिंग उसका एग्जाम्पल दे कि इन दिस बुक द बॉटल लेपर्ड वॉइसेस दिस थीम, this particular conflict using 2 children and 2 backgrounds to juxtapose the 2 varying cultures as in the African and the Western Christian one, right? So this person does this in which book? इसमें तो भाई मैं पहले अपना नाम लूँगी, मैं हूँ और मैंने ये बुक लिखी है, right? या इसमें इस तरह से ये चीज़ें और डिटेल में. So 2-1 are the examples of a particular conflict कि भाई किसने लिखा है, कहाँ लिखा है, एग्जैक्टली क्या लिखा है. तो 2-1 इस चीज़ की डिटेल दे रहा है, हैज़ टू बी लेटर. एंड 3 बेसिकली 4 and 3 गिव्स यू दैट कॉन्ट्रडिक्शन कि वेस्टर्न क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट भले इग्नोर करें या मना करें, बट ये तो एग्जिस्ट करता है, और इस पर्सन ने इस चीज़ को बताया. कहाँ और कैसे बताया, 2 बच्चे उस स्टोरी में 2 बैकग्राउंड्स हैं, उस तरीके से इस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट को बताने की कोशिश की गई है. ठीक है. सो दैट इज, सो 4-3-2-1, एक बार ठीक से लिख देती हूँ, 4-3-2-1 इज द सीक्वेंस. नाउ कैट 2023 स्लॉट 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए या आइडली
कि मुझे नंबरिंग ठीक से करनी चाहिए थी, बट क्वेश्चन सही से सॉल्व करना है हमें, दैट्स व्हाट मैटर्स. सो लेट अस रीड इट अगेन. इसमें जो आप चारों सेंटेंस रीड करो हमेशा पहले, तो रीड फर्स्ट ऑफ ऑल 4 sentences, फिर देखो कि भाई कहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि आई कैन कनेक्ट ईदर मीनिंग मैच, ट्रांजिशन वर्ड्स, प्रोनाउंस और मे बी टेंसेज. सो इन इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, टेंसेज आर द की एक्चुअली. इफ यू रियली रीड केयरफुली, one of the immediate recognizable impacts of the printing press was, past tense है, it was, right, it shifted, or like it could be, जो भी past में है, whereas only sentence 1 is in the present tense. Correct. So 2 3 4 everything is in the past and 1 is in the present. तो या तो 2 3 4 साथ में होंगे, 1 एंड में होगा, या 1 स्टार्टिंग में होगा और 2 3. तो 2 3 4 लेट्स रीड फर्स्ट एंड देन 1 को विल फिगर आउट लेटर कि ये स्टार्टिंग में रखना है या लास्ट में रखना है, क्योंकि टेंस का जो एक अलग है उसको सेपरेट ही रखना है. 2 3 4 से रीड कर लेते हैं. ठीक है. So let's start reading with 2. One of the immediate and recognizable impacts of the printing press was on how people learned. Right? So जब printing press आई तो एक change क्या है कि लोगों का सीखने का तरीका बदला. In the scribal culture, it primarily involves listening. So memorization was paramount. मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जब लोग लिख लिख के, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ एक पेपर दे दिया उसकी 1000 कॉपी आ गई, मैंने लोगों को बांट दी कि लोग पढ़ लो, नहीं. जब मुझे हर चीज़ लिख के अगर मुझे 100 कॉपी बने तो 100 बार लिखूंगी मैं. स्क्राइबल कल्चर मीन्स वो व्हेन यू आर लिटरली राइटिंग एंड नॉट प्रिंटिंग. तो स्क्राइबल कल्चर में अगर आपको कोई ज्ञान चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो आपको सुनना पड़ेगा. आपके टीचर्स को आपने सुनना, क्योंकि आपको हर चीज़ लिखनी है, एक ही बार में लिख पाओगे. तो मेमोराइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ कॉपी ऑफ इट if you're not writing. That is important. but जब printing press आई, that shift that learning process जो भी थे पे हम बात कर रहे हैं, as listening and memorization gradually gave way to reading. तो अब आपको ध्यान से सुनना और memorization याद रखना ज़रूरी नहीं है. अब आपके पास printed कुछ कॉपी है, रीड कर लो, सीख लो. नो लॉन्गर रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ आपको टीचर मेंटर की ज़रूरत नहीं. इट कुड बी डन प्राइवेटली, राइट, कि आप खुद भी कोई बुक पढ़ी, आपने उसमें सीख लिया. ज़रूरी नहीं कि टीचर कोई तभी आप सीख पाओगे, बट उससे पहले समवन इज़ नीडेड, अ मेंटर इज़ नीड. आप उसको सुनोगे, मेमोराइज करोगे, दैट इज टू. सो लर्निंग, हाउ लर्निंग चेंज्ड, राइट, हाउ लर्निंग चेंज इज़ वॉट वी आर सेइंग इन दिस 2 and 4. ठीक है. नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम लिसनर्स टू रीडर्स. तो जैसे वो लिसनर से अब रीडर बने, कि रीड करके सीख रहे हैं, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं किसी को भी. वॉज अ कॉम्प्लेक्स सोशल कल्चरल. तो एक कल्चरल फिनोमिना था, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ थी. एंड इट वॉज नॉट अंटिल द इंडस, पर ये जो एक्चुअल चीज़ थी, मतलब ये शुरू तो हो गई थी व्हेन प्रिंटिंग प्रेस केम, बट टिल इंडस्ट्रियल एराज इन फैक्ट्रीज आई, डेवलपमेंट शुरू हुआ, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लिटरेसी की लिटरेसी होनी चाहिए लोग पर, टुक रूट, कि टुक एज इन कि इस चीज़ को इंपॉर्टेंस मिली. सो this thing started with printing press, but around industrial era this thing really took up or took pace थोड़ी speedily, और अच्छे से ये चीज़ डेवलप हुई. And centuries later formal learning is still mostly based on reading. And now also, like the formal learning, formal as a school, college we go, it's based on reading. We have to read books. Even with the widespread use of other possible education affecting technology such as film, radio, television, बहुत सारी चीज़ें अब तो आ चुकी हैं AI की हेल्प से, like बहुत like एनिमेशन होता है इतना अच्छा, पर फिर भी रीडिंग तो अब इम्पॉर्टेंट हो ही गई है. सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से इट इम्पैक्टेड हाउ पीपल लर्न. इनिशियली दे हैड टू लिसन एंड मेमोराइज, उसके बाद दे हैड टू सिंपली रीड एंड लर्न, राइट. आपको किसी मेंटर की जरूरत नहीं. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये स्टार्ट हो गया था, but around industrial era it took root, and then it is still going on. This culture is still going. So 2 4 3 3 1 तो वैसे भी एंड में आना था, because it is in present tense. The thing is, but how it all started, प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो 2 4 होगा. 3 हम बोल रहे हैं कि ये अल्टीमेटली इस चीज़ को इम्पोर्टेंस, इस कॉन्सेप्ट या जो कल्चरल ये फिनोमिना रेवोल्यूशन था, ये इंडस्ट्रियल एरा में आया, जो कि अभी तक चल रहा है ना. एंड 2 4 में वी आर सेइंग कि हाउ द लर्निंग थिंग चेंज, राइट. यहाँ मेमोराइजेशन से, 4 में हम बोले कि हम सिर्फ रीडिंग से बस लर्निंग, लाइक रीड करो और सीखो, किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट, सो 2 4 3 1. येस एवरीवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, let's read this. Now if you read again carefully, pronouns are absolutely important. I told you in the first slide, pronouns are your friends, keep them closer. So her, she, किसको रेफर कर रहा है? Obviously वीना सहजवाला,
और कोई पर्सन दिख रहा है इधर पे, नहीं दिख रहा है। पर हर या शी से तो आइडियली सेंटेंस स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इजंट इट, वन या थ्री से होना चाहिए। ऐसे तो भाई कैट एग्जाम में कोई गारंटी चीज़ों की नहीं होती, बट राइट जो हमें लग रहा है लॉजिकली, हम एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट रीडिंग like that. So let's start reading by 1 and 3. Veena Sehjwala, a materials scientist at the University of New South Wales, believes there's a new way of solving this problem. Which problem? So that means this is not my first sentence. Let's read third. E-waste contains huge quantities of valuable metals, ceramics and plastics that could be salvaged and recycled. So e-waste जब आपने कुछ भी आपका रिमोट अभी पुराना हो गया, सेल डाल के भी चल रहा है, आपने फेंक दिया, राइट, कोई कोई चीज़ है आपने फेंक दिया, तो उनमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ें भी होती है, मेटल समथिंग, जो आप निकाल के रीयूज़ कर सकते हो। इट ऑल्दो करेंटली नॉट इनफ ऑफ इट, इफ इट इज़, मतलब ऐसी कोई चीज़ें नहीं है अपने पास, राइट, उसको निकालने के लिए। सो देन अब मुझे अगर 2 और 4 बोलना है तो वीना का तो नाम मुझे पहले लेना पड़ेगा, फिर ही मैं बोल सकती हूँ। 3 के बाद आइडियली हो सकता है 1 आता है, एक बार लिख लेते हैं। सो ई वेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल मेटल्स भी होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड वीना सहजवाला बिलीव्स दिस ए न्यू वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एज इन चीज़ों को कैसे हम रिसाइकल करें और निकालें, कैसे करें भाई, व्हाट इज़ हर प्लान। सो देन हम इधर पे बोले कि शी प्लान्स टू बिल्ड माइक्रो फैक्ट्रीज वो बना रही है दैट कैन टीयर अपार्ट द टैंगल ऑफ मटेरियल्स इन मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, जो भी हम एक मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर लोग फेंक देते हैं, नहीं चलता, अदर ई वेस्ट, उसमें से वो मटेरियल या मेटल कुछ है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो निकाल सकते हैं। सो ये माइक्रो फैक्ट्रीज एग्जैक्टली क्या है वो इधर पे हम स्पेसिफाई करें। सो ऑलवेज जनरल टू स्पेसिफिक यू हैव टू गो। हर विजन इज़ फॉर ऑटोमेटेड ड्रोन्स, कि ड्रोन्स पहले ऑटोमेटिक घूमे, राइट, जिनको रोबोट्स हो, और वो एग्जैक्टली मेटल के लिए ट्रेंड हो, या मेटल के लिए उनका लाइक नो प्रोग्रामिंग हो, जैसे कोई मेटल दिख रहा है कहीं डिटेक्ट हो रहा है तो उसमें से निकाल सके। टू पिक आउट कॉम्पोनेंट्स, पुट देम इनटू अ स्मॉल फर्नेस एंड स्मेल्ट एज इन बर्न, किसी एक फर्नेस में डालो, बर्न करो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ताकि मेटल उसमें से इजीली निकल आए, और फिर मैन्युफैक्चर के पास भेजो टू रीयूज। तो इस तरह की माइक्रो फैक्ट्रीज में एग्जैक्टली क्या काम होगा, इस तरीके का काम होगा। सो हियर माइक्रो फैक्ट्रीज की हम डिटेल दे रहे हैं इन सेंटेंस 2। सो 4-2 इज क्लियरली अ पेयर, सो 3-1-4-2, इजंट इट। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स? नहीं। ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट लगेगा अगर किसी को लगेगा, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 ये कैट का क्वेश्चन, तो कैट का तो डिफिकल्टी होता है, आसान चीज़ थोड़ी ना आती है कैट में, नहीं, आसान चीज़ भी आती है। सेकेंड, इफ़ यू कंफर्टेबल विथ लैंग्वेज, इफ दैट फियर इज नॉट विद इन यू, राइट, आप सिर्फ क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही देख रहे हो, एक लेकिन दिमाग लगा के टेक्निक कुछ लगाने की कोशिश करो, क्या प्रोनाउंस मिल रहा है, क्या ट्रांजिशन वर्ड्स मिल रहे हैं, क्या कोई टेंस का कुछ डिफरेंस है, क्या 2-3 चीज़ें जब वाइल रीडिंग यू विल फोकस, आपको इजीली पेयर मिल जाएगा। आपको इतना तो पता ही चलेगा कि यार 1-4-2 या एटलीस्ट 4-2, क्योंकि हर और शी लिखा है तो वो वीना के लिए, और फिर हम पढ़ लेते हैं, इजंट इट। सो ज़्यादातर क्वेश्चन अभी हमने सारे कैट 2023 के क्वेश्चन किए हैं, 6 के 6 क्वेश्चन जो आपको आए हैं लास्ट ईयर। अगर आप ये 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखो विच आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट, राइट, लेट्स डू अ क्विक रिविजन। वोकैबुलरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर एंटायर VARC विल बिकम अ पीस ऑफ केक अगर आप सिर्फ वोकैबुलरी इंप्रूव कर लो। कैसे इंप्रूव होगी? डेली एडिटोरियल्स रीड करो, मिनिमम 2 एडिटोरियल्स, इट यूल फाइंड 4 to 5 डिफिकल्ट वर्ड्स, डिक्शनरी में चेक करो, राइट, फिर समझो। ऐसे डेली रीड करते करते आपकी 3 to 4 मंथ्स में वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं पर इतने सारे वर्ड्स होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, इज देयर एंड टू इट? यस, देयर इज एंड टू इट। ऑफकोर्स इफ़ यू लर्न डिक्शनरी तो देयर इज नो एंड, राइट, वो तो एक अलग ही काम हो गया, वो तो कोई नहीं बोल रहा है। बट जो रेगुलरली फ्रीक्वेंसी यूज्ड वर्ड्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड, जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ही बोलते हैं, जो जनरली न्यूज़पेपर जब कोई आर्टिकल लिख रहा है, कोई नॉवल लिख रहा है, बुक लिख रहा है, मैगजीन, तभी वो वर्ड्स यूज होते हैं, कोई भी ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं हो जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर रीडिंग करो 3 मंथ्स में आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे स्टूडेंट्स, मैं गारंटी देती हूँ। जहाँ पे आपको उसके बाद आप कोई भी न्यू नॉवल, कोई मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीड करें आफ्टर 3 मंथ्स, तो आपको ज़्यादा डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको डिक्शनरी के सारे वर्ड्स आ गए, पर आपको काम के सारे वर्ड्स आ गए जो रीडिंग में, बुक्स में, मैगजीन्स में, जो आपके कैट में आ सकते हैं, जो आपको कैट के अलावा अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स भी वोकैबुलरी पूछ सकते हैं, उतना आपका काम हो गया और वही आपको करना है। सो इवन दो देयर कुड बी मेनी वर्ड्स ऑन अर्थ, यू जस्ट नीड टू नो सर्टेन वर्ड्स। और डेली अगर आप 2 आर्टिकल रीड करोगे, 1 आवर की रीडिंग करोगे फ्रॉम एडिटोरियल्स, यू आर गुड टू गो फॉर कैट एज वेल एज अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी।
कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज मीनिंग मैच. सो एज आई सेड, दो सेंटेंस की बात सेम होनी चाहिए, सेम तरह की बात करने चाहिए, सेम तरह का कंटेंट इन्फॉर्मेशन देने चाहिए. जस्ट बिकॉज दे हैव टू सिमिलर वर्ड्स डजेंट मीन दे मे बी अ पेयर. सो वर्ड मैच पे आप मत जाओ, आप हमेशा मीनिंग मैच पे जाओ, राइट. मीनिंग मैच के बेसिस पे पेयर बनाओ. अगर आपको मीनिंग दो सेंटेंस का सिमिलर नहीं मिल रहा है, देन यू माइट फाइंड प्रोनाउंस लाइक वी जस्ट सॉ इट, दैट, दीज, दोज, है ना. एंड दैट वे वी डिड सॉल्व हर, वी डिड सॉल्व लाइक एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चन. अभी आपने जस्ट देखा. ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक एंड अगर है तो आप सिमिलर टाइप के सेंटेंस कनेक्ट करोगे, सिमिलर टोन के, पॉजिटिव पॉजिटिव. बट हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इजंट इट. ये सारी चीज़ें अभी हमने यूज़ भी की, नॉनदलेस भी था, हाउएवर भी था, बेस्ड ऑन दैट. टेंसेस का, अगर आप कोई चीज़ एक प्रेजेंट में है, पास्ट में है, तो इट विल हेल्प यू इन मेकिंग द सीक्वेंस. कैसे होगा वो तो आप पढ़ के आपको पता चलेगा. आपको ज़रूरी नहीं कि इट्स ऑलवेज पास्ट टू प्रेजेंट या प्रेजेंट टू पास्ट, बट इट विल हेल्प यू. से हमें ये पता चला कि ये वन सेपरेट आएगा, 2 3 4 साथ में लिखना है, इजंट इट. एक आइडिया मिल गया. कभी कभी पेयर मिल जाता है कि ठीक है इससे स्टार्ट होगा बिकॉज ईयर भी गिवन 1940 या समथिंग लाइक दैट. सो किस तरह का क्लू मिले हमें टेंसेस में, वी डोंट नो, लाइक नो, बट क्लू बहुत अच्छा मिल जाता है जिससे आपका काम आसान हो जाता है. सो टेंस के साथ साथ ऑफकोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द 4 सेंटेंस, अंडरस्टैंड द पैराग्राफ टू नो अरेंज इट, right. But it's a great clue for you to find the sequence quickly. So keep these 5 points in mind. These 5 points is all you need to crash, right, to smash cat 2024 parajumbles, and some more practice which you will be doing on your own plus with me, right, in upcoming session. समझ लेते हैं how to approach specifically cat parajumbles. देखो parajumbles बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, cat में भी आते हैं, अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं. बट डिफरेंस ये होता है कि when you take parajumble in cat exam, there are no options, isn't it? You get 4 lines and then you have to type your sequence on by yourself on your own, like कि ठीक है C B D A B C D जो भी आपको लगता है. so it gets more difficult compared to other exams. so कैसे हम अप्रोच करें? देखो पहले तो जब आप शुरू करते हो आपको बेसिक स्ट्रैटेजीज ही फॉलो करनी है जो ही किसी पैराजम्बल के लिए होगी. पहले आपको सेंटेंस समझ आना चाहिए. योर कंफर्ट विद लैंग्वेज हैज़ टू बी रियली अप टू द मार्क. लाइक आपको लैंग्वेज पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, वो वर्ड समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एंड देन वंस दैट इज़ टेकन केयर ऑफ, वंस दैट इज़ डन, देन ऑफ कोर्स, राइट, आप बिना ऑप्शंस के या टीटा, टीटा मीन्स टाइप इन दी आंसर, आप टीटा लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करो. सो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स यू मस्ट नो व्हेन यू जस्ट स्टार्ट solving parajumbles. So when you get 4 sentences, students, you have to understand the purpose of the passage. Purpose as in what is the main topic here. आपको सबसे पहले तो वही समझना है कि मेन टॉपिक क्या है इस सब चीज़ों का, राइट. अगर आपको ये जो पूरा पैराग्राफ है किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को, या हमें अवेयरनेस दे रहा है, मोर नॉलेज दे रहा है, कोई कंसर्न टेंशन की बात है, या कुछ सोल्यूशन बताया जा रहा है, या कुछ नया सरप्राइजिंग है, टोन क्या है और पर्पज़ क्या है, किस तरीके क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. वंस यू हैव रेड द इंटायर पैराग्राफ, चारों लाइन आपने पढ़ ली, फिर आप ये वर्ड्स देखोगे, आपको कुछ ऐसे दस, देयर फोर, फाइनली, इवेंचुअली ऐसा कुछ मिल रहा है. अगर ये मिल रहा है तो जनरली वो लास्ट लाइन होगी, या इंट्रोडक्टरी अगर है तो नाउ डेज, बिगिनिंग, टू बिगिन विथ, मे बी. हो सकता है आपको ये मिले भी ना, लाइक इंट्रोडक्टरी कंक्लूडिंग सेंटेंस कई बार नहीं मिलते हैं, स्पेशली इन कैट एग्जाम. बट वॉट यू ऑलमोस्ट ऑलवेज गेट इज कॉन्ट्रास्ट एंड कनेक्टिव वर्ड्स. ये आपको ऑलमोस्ट हमेशा ही मिलेंगे, लाइक बट, येट, ऑल दो, ऑन दी अदर हैंड, नेवरदलेस. इससे आप दो पॉजिटिव टू नेगेटिव, दो ऑपोजिट सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हो. वेयर एज इफ आई से एंड, एडिशनली, इन एडिशन टू दिस, अपार्ट फ्रॉम, इससे आप दो सेम टाइप के सेंटेंस, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, ऐसे आप सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हो. ड्यू टू है मतलब सिंस, या एज है मतलब आपको एक रीज़न देना है, कोई सेंटेंस है वो क्यों हुआ है उसका रीज़न देना है, इजंट इट. या फर्स्टली हो गया, कोई डेट्स या टाइम गिवन है तो उससे भी आप अपनी एक पेयर सीक्वेंस बना सकते हो. अब ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में नहीं होंगी ऑफकोर्स, इसमें से क्या है उसी की प्रैक्टिस आपको करनी है. सो इन टुडेज़ क्लास मैं आपको बताऊँगी कैसे हम अच्छे से पेयर्स बनाएंगे. पेयर्स एज इन कि हो सकता है आपको सीक्वेंस ना मिले 4 सेंटेंसेज में, बट एटलीस्ट यू विल नो ओके बी डी बी इज़ अ पेयर, है ना. पहले हम अच्छे से पेयर कैसे बनाना सीखें और उन्हीं पेयर से लॉजिक के थ्रू कैसे हम सीक्वेंस बना सकते हैं. सो इफ़ यू फाइंड नाउन, प्रोनाउन, एंटीसीडेंट मतलब सब्जेक्ट, कोई पर्सन या प्लेस के बारे में बात है और फिर उसके बारे में ही, शी, इट, या वेयर, देयर मतलब किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है, इजंट इट. या व्हेन लिखा है मतलब किसी
पर्टिकुलर इवेंट टाइम के बारे में बात हो रही है. सो दैट वे हाउ कैन वी फिगर आउट द पेयर्स. सेकेंडली एज आई टोल्ड यू टाइम सीक्वेंसिंग, क्या आप देखो अगर कोई डेट, टाइम, ईयर्स, लेटर, आफ्टर ऐसा कुछ लिखा है उससे आपको एक हिंट मिल सकती है. सो ये सारे हम पास्ट ईयर क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर एग्जाम्पल विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है. फर्स्ट स्टेप इज टू रीड ऑल 4 सेंटेंसेस. राइट, रीड ऑल 4 सेंटेंसेस. राइट, एक पैराग्राफ समझ लो एंड देन क्यों पढ़ना है, टू फिगर आउट द मेन टॉपिक कि यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं. वंस यू हैव फिगर्ड आउट द मेन टॉपिक, सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द पेयर कि यार कौन से 2 सेंटेंस साथ में हो सकते हैं. Okay, now if you just focus on first view, despite the comment taking like any other comment, this link, so this link means it refers to something. So मुझे इतना पता है कि C का एक पेयर बन सकता है ना, C और उसके पहले कुछ आ सकता है. सेकेंडली हम A से स्टार्ट, डिस्पाइट द कॉमेंट A से स्टार्ट नहीं कर सकते, इजंट इट. दिस लिंक C से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, मे बी B या D से स्टार्ट कर सकते. B या D से ही हम रीड करना भी स्टार्ट करते हैं बिकॉज उसकी जो स्टार्टिंग है वो लग रही है एक ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है. Like any other comet, Swift-Tuttle follows a steep incline when compared to planets in the solar system. ठीक है, तो एक incline follow करता है, जैसे सारे comets follow इसका path भी एक incline steep incline होता है. ठीक है, gathering a lot of speed as it dives down into the solar system to get close to the sun and out again. So here we are introducing this comet Swift-Tuttle कि किस तरह से ये चलता है, how it travels in the universe, right? Now let's read D. The spectacular Perseid meteor shower that is witnessed every August, peaking in mid-August, is in fact created by the dust and debris left by the Swift-Tuttle. तो हम जो बोल रहे हैं कि ये इस तरह चलता है और जो एक हम मीटियर शावर देखते हैं वो इसी का डस्ट होता है, इसी Swift-Tuttle का. तो इसकी ये हमने यहाँ पे इंट्रो दिया. अब इसकी वजह से हमें मीटर शावर देखने मिलता है. इट विल बी मोर डिटेल. सो अगेन वी डोंट नो इफ बी एंड डी इज अ पेयर, बट डेफिनेटली बी और डी में बी पहले आएगा फिर डी आएगा. हो सकता है इनके बीच में कुछ आए, बाद में कुछ आए, वी डोंट नो, बट बी हैज़ टू, बिकॉज पहले आप जनरली किसी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स, उसका यूज़ क्या है, उससे और क्या पता चलता है उसके बारे में मोर, दैट यू टॉक लेटर. सो बी एंड डी तो एक हो सकता है. अब एक बार सी, ए या ए सी पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो ये मीटियर शावर जो है ये Swift-Tuttle का डेब्रिस या लेफ्ट डस्ट है. डिस्पाइट द कॉमेट टेकिंग 133 ईयर्स टू पास बाय द अर्थ, तो हर 133 ईयर्स में वो अर्थ को पास करता है. मीटियर शावर हैपन्स एवरी ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ द अर्थ मूविंग थ्रू द ट्रेल ऑफ द कॉमेट्स ऑर्बिट. राइट, वो ट्रेल क्योंकि हमें दिख रहा होता है. एंड दिस लिंक बिटवीन द कॉमेट एंड मीटियर शावर was discovered within 3 years of the comet's discovery by Giovanni. So ये जो this link as in this particular कि despite comet तो 133 years में जा रहा है, बट उसका हमें ये हर साल मिलता है. हर साल क्यों दिखता है मीटियर शावर, बिकॉज ऑफ द ट्रेल. जो ट्रेल मतलब लास्ट में जो डस्ट बचता है, मीटियर कॉमेट तो निकल गया पर उसका डस्ट है उसकी वजह से. तो ये जो लिंक है कि क्यों कॉमेट तो निकल गया पर मीटियर शावर हर साल, ये इस पर्सन ने निकाला. तो दिस लिंक रेफर्स टू एक्चुअली ए. सो वेरी क्लियरली पेयर हमें क्या मिला, ए सी इज अ पेयर, इजंट इट. अब ये तो डिटेल होगी. ए सी में क्या है, मीटियर शावर के बारे में किसने फिगर फाइंड आउट किया, कब किया, राइट, ये तो मीटियर शावर के बारे में. बट किसका मीटियर शावर, टॉपिक क्या है, Swift-Tuttle. Swift-Tuttle इंट्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है, बी में हो रहा है, तो बी से ही स्टार्ट होगा. सो एक्चुअली राइट सीक्वेंस विल बी बी डी ए सी. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? तो क्या हमने सीखा इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, जनरली टॉक अबाउट थिंग्स, राइट, और फिर उसकी डिटेल्स बाद में. जब आप डिटेल्स आप करेक्ट कर रहे हो तो आपको दिस, दैट, एंड, राइट, दोज, वेयर, व्हेन, ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे, इससे आप एक पेयर बना पाओगे और आपके लिए चीज़ें ईजी हो पाएंगी. नाउ लेट अस सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन, दिस वन. अगेन देखो इसमें भी पहले तो आप चारों सेंटेंस रीड कर लो, राइट, फिगर आउट द मेन टॉपिक, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. वंस यू हैव फिगर्ड आउट द मेन टॉपिक, फाइंड अ पेयर, कौन से 2 सेंट, और फिर थोड़ा लॉजिकली सोचो कि अब इसके बाद क्या एक और पेयर बन सकता है, या यही 2 वर्ड्स के बाद एक और तीसरा क्या कनेक्ट हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, राइट. Okay, now here if we read carefully, there's a common word, liberalism, liberal capitalism, neoliberalism, isn't it? कुछ इस तरह की चीज़ें हम बात कर रहे हैं. So liberalism seems to be the common topic,
isn't it? So एक बार शुरू कर लेते हैं. What is this? So liberalism insisted on the separation of the state and the market and decried गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मार्केट. लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम कि जहाँ पे गवर्नमेंट और मार्केट मतलब बिजनेसेस अलग अलग होने चाहिए. बिजनेस मार्केट गवर्नमेंट को बिजनेसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. दैट इज लिबरलिज्म. ये कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे लिबरलिज्म होता क्या है, उस कॉन्सेप्ट को वी आर इंट्रोड्यूसिंग. राइट नाउ न्यू लिबरलिज्म बिलीव्स दैट गवर्नमेंट शुड इंटरवीन. तो यहाँ पे कि नहीं कर डिक्राई मतलब क्रिटिसाइज गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस. बट यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म सेज दैट गवर्नमेंट को इंटरफियर करना चाहिए इन मार्केट्स बट ओनली ऑन द साइड ऑफ बैंक्स, फिनेंस, कैपिटलिस्ट, लीडिंग एजेंसी. मतलब बैंक्स जो ऑफिशियल चीज़ है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए. राइट फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम डूइंग अ बिजनेस एंड माई मनी इज़ गोइंग इन द बैंक, वहाँ पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कुछ गड़बड़ ना हो जाए एवरीथिंग. बट मैं बिजनेस जो हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे कितना राइट हमारी जो प्रोसेस है वो कैसे चलने चाहिए, कैसे नहीं चलने चाहिए, उस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं होना चाहिए. दैट इज़ न्यू लिबरलिज्म सेज. सो ये दोनों ही गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए इस बारे में बात कर रहे हैं. सो बी एंड डी में कुछ तो कॉमन है. राइट कुछ टॉपिक्स कॉमन है. अब बाकी का रीड कर लेते हैं. एवरी टाइम फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन क्रिएट्स अ क्राइसिस. क्यों ऐसा करना चाहिए इसका देखो जो डी में लिखा है उसका रीज़न है यहाँ पे कि एवरी टाइम स्पेक्यूलेशन क्रिएट्स अ क्राइसिस गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टैक्स देयर सिटीजन्स एंड यूज दैट मनी टू सेव बैंक्स एंड फाइनेंशियल. जब उनको लगता है कोई क्राइसिस आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, तो टैक्स बढ़ा देते हैं और अब बैंक्स को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए उनको बचाने की कोशिश करती हैं. और अगर कोई आर्ग्यू करे, इवन इफ वन आर्ग्यूज है, जो कि हमेशा सब लोग करते हैं, इस बार टैक्स बढ़ा दिया, बजट हर बार जब कुछ अगर डिफरेंट होता है फ्रॉम प्रीवियस बजट. सो देन लिबरल कैपिटलिज्म वाज ऑलवेज टू सम एक्सटेंट स्टेट कैपिटलिज्म. दिस सिग्निफाइज अ मेजर शिफ्ट. मतलब जो भी कैपिटलिज्म और स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल, गवर्नमेंट ही अल्टीमेटली अर्न कर रही है इन कैपिटलिज्म, कोई और अर्न नहीं कर रहा है, भले लोगों को प्रॉब्लम है. सो वेरी क्लियरली मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि बी इंट्रोड्यूसेज द टॉपिक, इजंट इट? बी इंट्रोड्यूसेज द टॉपिक दोनों में, और डी में वही गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बारे में लिखा है. और एक और चीज़ आई कैन सी DAC इज ऑल्सो अ पेयर. डी में गवर्नमेंट का बोला है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? कोई भी क्राइसिस होगा तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है, बट जिसपे कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है और मतलब पर उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट की सपोर्ट में होता है पूरा जो कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म का, इजंट इट? सो DAC क्यों करना है? सो DA इज अनदर पेयर लॉजिकली. तो आपको BDA भी मिल जाता है तो आपका आंसर इन अ वे हो ही गया. सो और फाइनल सीक्वेंस इज BDAC. यप everyone. Next question we'll solve this one. Now इसमें भी अगर आप स्टार्टिंग में वर्ड्स देखो, सो बट व्हाट स्टार्टेड, बट मतलब ये तो ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, isn't it? तो इसका क्या पेयर होगा? बी के साथ मेन टॉपिक पहले हम पढ़ लेते हैं. यू कैन पॉज, रीड फॉर अ मिनट एंड देन कम बैक, फाइंड अ पेयर. अब बी के पहले कुछ होना चाहिए. राइट आफ्टर द लेहमान क्राइसिस लो रेट्स एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग वर नीडेड. ठीक है, लेहमान क्राइसिस क्या है? अगर कहीं लिखा होगा तो ग्रेट, हम इसको उसके बाद में रख सकते हैं. इफ़ नॉट, ये एक प्रॉब्लम हुई. सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम that after this crisis low rates and quantitative easing were needed. low rates as in कि लोन कोई ले रहा है उस पर लो रेट्स, और थोड़ा सा फिनेंशियल ईजिंग की वही चीज़ें हों. बैंक इतने स्ट्रिक्ट हो गए तो ये क्राइसिस चला था, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़रूरत थी इस चीज़ की. Had the world's leading central banks not provided emergency liquidity back in 2008, so क्योंकि उनको लो रेट्स चाहिए थे, क्वांटिटेटिव ईजिंग, तो उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट्स ने लिक्विडिटी में थोड़ा पैसा बाकी बैंक्स को नहीं दिया होता, द ग्लोबल इकोनॉमी वुड हैव फेस्ड मेल्टडाउन. तो ग्लोबल इकोनॉमी बहुत थी, तो इट वॉज नीडेड एंड देन इट वॉज गिवन बाय हु? by the global banks, leading central banks and that. So CA is very clearly a pair. Are you getting this? पेमेंट सिस्टम्स वुड हैव फेल्ड. हम क्या ऐसा हो जाता और क्या हो जाता? पेमेंट सिस्टम्स वुड हैव फेल्ड, स्पार्किंग पैनिक, इकोनॉमिक टॉपर, इकोनॉमिक इनएक्टिविटी, सिविल अनरेस्ट, ये सारी चीज़ें हो जाती. बट व्हाट स्टार्टेड एज अ शॉर्ट टर्म इमरजेंसी पेन किलर देन मूव्ड इनटू अ प्रोलॉन्ग मॉनिटरी कॉम. बट हम लोग इससे बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत हमको लगा इस इमरजेंसी पेन किलर है, उसके बाद इकोनॉमी इंप्रूव होगी, पर फिर भी वो कोमा में रही, एज इन वो इनएक्टिव ही रही इकोनॉमी बहुत टाइम तक, सालों तक. इट डिडंट ग्रो एक्चुअली इवन आफ्टर सच हेल्प, और ये नहीं होता तो और भी प्रॉब्लम हो जाती. सो दिस वॉज नीडेड, दिस इज़ अ प्रॉब्लम. सोल्यूशन कहाँ से मिला? वो लीडिंग बैंक्स ने दिया, राइट और वो दे नहीं देते तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. और वो वुड हैव, सो वुड हैव. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? सो CADB.
राइट। पर उसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी ये हुआ ही अल्टीमेटली। इट वॉज नॉट अ शॉर्ट टर्म पेन किलर कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक हो जाएगा. इट वॉज स्टिल गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. Okay, next question, everyone. Read the entire paragraph first of all. Now here, when you read all four sentences, एक बार हम पढ़ लेते हैं. If you reach the point where you're ready to hand censorship tools to an authoritarian regime in the name of making the world more open and connected, it's time to ask what mission you're really serving, right? Then for example, यहाँ पे Facebook का example दे रहे हैं. When your company's ends as in goals. Goals are as grand as bringing the world closer together, accelerating the advent of this. It becomes pretty easy to justify unsavory means. And according to a report, again, according to a report, looks like an example of something, right? Of Zuckerberg and everything. So यहाँ पे actually main topic क्या है, हम पहले ये देख लेते हैं. तो main topic B और D से तो नहीं शुरू हो सकता. So most probably A या C से शुरू होगा. C से शुरू होगा. I'll tell you the reason. When your company, अगर आपकी कंपनी का गोल ही इतना बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ही आप बिजनेस कर रहे हो, एक्सिलरेटिंग द एडवेंट ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल कि भाई हम इजी ट्रांसपोर्ट, कैब्स, ओला, राइट, लाइक दैट, ओला, उबर, इट बिकम्स प्रिटी इजी टू जस्टिफाई. तो अगर आप कुछ उसमें आप ऊपर नीचे भी कर रहे हो चीज़, अनसेवरी मीन्स एज इन कुछ गलत भी हो रहा है, तो भी आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हम इतने बड़े लेवल पे जा रहे हैं, चीज़ें स्मूथ और इतनी इजीली नहीं पॉसिबल है इतने बड़े गोल्स को अचीव करें, राइट, बिल्कुल इतनी स्मूथली या ईजीली. सो दैट्स हाउ पीपल जस्टिफाई. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देन फेसबुक का एग्जाम्पल वी आर गिविंग कि फेसबुक इन 2016 सीक्रेटली बिल्ट अ सेंसरशिप टूल प्रिज्यूमेबली टू पेव द वे फॉर फ्यूचर एंट्री इनटू चाइना, राइट, कि हाँ ठीक है हम इस चीज़ को सेंसर, क्योंकि चाइना में भाई बहुत सी चीज़ें अलाउड नहीं है, तो उनको लगा चाइना में फेसबुक वगैरह पे नहीं चलता, तो उनको लगा हम चाइना में भी एंट्री कर लेंगे, वहाँ के लोग भी यूज़ हो लाइक यूज़ करेंगे फेसबुक, तो हम एक सेंसरशिप टूल लगा देते हैं. उन्होंने बिल्ड करे सीक्रेटली कि भाई इसको आप क्या क्या सेंसर कर सकते हो चाइना गवर्नमेंट के लिए, क्या ये आप अपनी जनता को मत दिखाओ, फिर भी फेसबुक यूज़ करो, टाइप दैट. तो एक एग्जाम्पल अभी हमने शुरू किया है, तो ये हमको पता है कि डी इज़ ऑल्सो एन पार्ट ऑफ एग्जाम्पल, मार्क जकरबर्ग. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इन न्यूयॉर्क टाइम्स, जकरबर्ग रिस्पॉन्डेड टू एम्प्लॉयज़ concerned by assuring them it's better for Facebook to be a part of enabling conversation even if it's not yet. वो बोले कि एटलीस्ट वहाँ के लोग थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन कर पाएंगे, ठीक है चीज़ें सेंसर होंगी, हर चीज़ ओपनली आप वहाँ बात नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट ऐसी है, बट एटलीस्ट थोड़ा कॉन्वर्जेशन, थोड़ा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. सो एटलीस्ट कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगा, मे बी फुल या ओपन कॉन्वर्जेशन ना, जब उस पर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी हुई, व्हेन दे सेंसरशिप प्लस सेंसर कर सकते हैं. देखो सोशल मीडिया का मतलब है कि आप ओपनली सब बोल सकते हो, राइट. इन अवे ट्विटर हो गया, कोई कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है, बट अगर आपकी गवर्नमेंट सेंसर करके इस तरह के वर्डिंग्स कोई नहीं टाइप कर सकता है, इस तरह के टॉपिक्स पे कोई नहीं लिख सकता है या बोल सकता है, तो सोशल मीडिया को वैसे तो कोई मतलब रहता नहीं है, बट ही सेइंग कि स्टिल उसमें भी लोग कुछ तो बात कर पाएंगे रादर देन नो कॉन्वर्जेशन एट ऑल. तो इसलिए सेंसरशिप जो उसने ऑप्शन डाला है, हमारे डीएक्टिवेशन का होता है, वो सारी चीज़ें उसको वो जस्टिफाई कर रहा था. सो बी डी इज़ वेरी क्लियरली अ पेयर, बिकॉज सी टॉक्स अबाउट जब बड़ी चीज़ें आप करते हो तो छोटे छोटे कुछ अच्छी चीज़ें चल जाती हैं, राइट. तो बी डी इज़ एन एग्जाम्पल and that goes really well. So A option, let's read A sentence. If you have reached the point where you're ready to hand censorship tools to an authoritarian regime in the name of making the world more open and connected, it's time to ask what mission you're, मतलब अगर आप सेंसरशिप दे रहे हो एक गवर्नमेंट को जो ऑलरेडी अथॉरिटेरियन है, जो ऑलरेडी अपना इतना चला रही है, दो ही मत, तो बताओ वो तो लोगों को और ब्रेन वॉश करेगी और अपने हिसाब से उसी चीज़ों को सेंसर करेगी जो वो नहीं चाहते, ऐसी चीज़ों को सोशल मीडिया में प्रमोट करेगी जो वो चाहते हैं लोग बात करें, जिसके बारे में समझें. तो आपको देखना है कि आप सच में एक डेमोक्रेसी या एक कॉन्वर्जेशन आप इनेबल करना चाहते हो या आप क्या दूसरा करना है, बिकॉज इससे तो कोई फ़ायदा देखा जाए तो है नहीं, राइट. सो ए इज़ बेसिकली आंसर टू डी. डी में वो बोल रहे कि हमसे भले ही फुल कॉन्वर्जेशन नहीं हो पाएगा सेंसरशिप में, थोड़ा बहुत तो हो पाएगा. वो बोल रहे कि थोड़ा बहुत भी हो पाएगा तो वो तो गवर्नमेंट की मर्जी से होगा. तो ये कौन से टाइप का मिशन है, कौन से टाइप की डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे हो आप, ना. पीपल आर क्रिटिसाइजिंग दैट. Okay, now this is 5 sentences. 5 sentences student generally doesn't come in CAT, it comes in ZAT exam. अगर आपको कोई 5 sentences का पैराजम्बल करा रहा है जो कि भले हार्ड है, CAT जैसा ही है, but then it's 5 sentences, then it's ZAT. So I've taken this question from ZAT, otherwise mostly तो हमने CAT से ही किए हैं. So yeah, let's solve this. I'll give you a minute to read. अब इसमें मेन टॉपिक क्या है कि CAT कैसे कैट एंट कैसे चलते चलते अगर किसी गैप में आ जाए कहीं पे तो कैसे क्रॉस करती है, राइट. उनका प्रोसेस क्या है एंड हाउ इट क्रॉसेस द पाथ, राइट, और समथिंग एक कुछ भी गैप आ जाए तो वो कैसे करेगी दैट. अब इसमें हम
एक पेयर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल इन दिस वे, या बट व्हेन इट फील्स, इट मतलब कौन, राइट, एंट, ants in ant, isn't it? So that way we can solve. अब इसमें मेन टॉपिक क्या है कि मेन टॉपिक इज द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम जब आती है तो वो कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करती है. सो व्हेन एन एंट ऑन द मार्च कम्स टू अ गैप इन इट्स पाथ, इट स्लोज डाउन. तो जैसे एक एंट फॉर एग्जाम्पल चल रही है ऑन अ सर्टेन पाथ, अब यहाँ पे गैप, गैप मतलब कुछ तो गड्ढा है, समथिंग इज इट कैनॉट क्रॉस स्मूथली. तो अभी फिर आगे कुछ है, तो अभी यहाँ पे एक एंट, उसके पीछे बहुत सारी एंट्स हैं, वो आके इधर रुक गई, तो वो स्लो हो जाएगी. ठीक है, अब तो आगे जा नहीं सकते, आगे कुछ है, रिवर आ गई, कुछ कुछ हो गया, राइट. हाउ इट विल क्रॉस, छोटा सा कुछ है. सो हाउ इट इज़ गोइंग टू क्रॉस द रेस्ट ऑफ द कॉलोनी. तो इसके जो पीछे एक कॉलोनी है, स्टिल बैरलिंग अलॉन्ग एट 12 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, कम्स ट्रैम्पलिंग ओवर. तो उनको तो पता ही रुकी हुई है, तो अगर फास्ट आप भाग रहे हो, एकदम से आपके आगे वाला रुक जाए, तो आप उसके ऊपर कूद जाओगे, आपके हो जाएंगे, आप गिर सकते हो, क्योंकि एकदम सामने वाला भागते भागते जो आपके आगे भाग रहे हो रुक गया है, तो इट कैन टकरा सकते हो. सो जो पीछे उसकी जो कॉलोनी चल रही है इस स्पीड पे, वो दे कम ट्रैम्पलिंग, वो गलती से उसके भाई ऊपर गिर जाते हैं. अच्छा रुकना है, उनको पता ही नहीं होता. तो पीछे के जो एंड्स होते हैं दैट कि भाई अच्छा, वो बोलेगी अब गैप आ गया. सो ओके, दिस हैपन्स. अब सब एंड्स वहीं पे अब क्या करना है. सो बट व्हेन इट फील्स अदर एंड्स वॉकिंग ऑन इट्स बैक, सो देखो दे कम ऑन इट्स बैक, और जब उसको पता चलता है अच्छा दूसरी एंट पे वो बैक पे वॉक कर रही है, द एंट, तब भी एंट वो शांत, जब से आगे वो शांत रहती है कि ठीक है ये मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ने दो, right, like that. So back, so BEA, both talks about when ants get over its back, right, that. Are you getting this everyone? ठीक है. सो ये प्रोसेस रिपीट होता है, एज इन ये एंट उसके ऊपर चढ़ी, ये एंट उसके ऊपर चढ़ी, ऐसा करके एक वो लाइक इस तरह का बना देते हैं, रादर देन दिस वो एक इस तरह का एक लाइक नो पोल टाइप का समझ लो, वैसा बन जाता है. द प्रोसेस रिपीट्स एज ए नेक्स्ट एंट इन लाइन शोज गेट्स ट्रैम्पल, फिर वो ट्रैम्पल होती है, फ्रीजेज इन उसके ऊपर चढ़ जाती है, फिर उसको लगता है अच्छा आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है. एंड इन दिस वे, इस तरीके से द एंड्स बिल्ड अ ब्रिज, एक ब्रिज टाइप का बन जाता है, लॉन्ग इनफ टू स्पैन जो भी सामने गैप है. फॉर एग्जाम्पल इधर एक गड्ढा, तो ये करके फिर ये ऐसे करके इसको ड्रॉप कर देगी, इसको ड्रॉप कर देगी, इसको ऐसे करके एक दूसरे पे चढ़ के सब ऑलमोस्ट हो जाते हैं, सब एकदम से उस तरफ आ जाते हैं ब्रिज बन के, राइट. एंड सो दिस इज अ सोल्यूशन. ये क्या है, डी इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सो BEA DC, या गॉट इट एवरीवन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. So here we are talking about a particular painting art of, if you see हर सेंटेंस में मार्गरेट एंड मार्गरेट के बारे में लिखा हुआ है. ऑल्सो इफ़ यू सी यहाँ पे ये फुल नेम है रेने मार्गरेट, बाकी सब में सिर्फ मार्गरेट. हमेशा फुल नेम पहले आता है फिर सरनेम आता है. तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर विदाउट इवन रीडिंग कि डी से ही स्टार्ट होगा. सो वन ऑफ रेने मार्गरेट्स मोस्ट फेमस पेंटिंग्स, द ट्रेचरी ऑफ इमेजेस, फीचर्स एन इमेज ऑफ टोबैको पाइप विद द वर्ड्स दिस इज नॉट अ पाइप अंडरनीथ इट. तो उसने एक अपने पेंटिंग में ऐसे लिखा था, एक पाइप की टोबैको पाइप था, but below that it was written this is not a pipe, right, that. So what does that mean? So in painting this Margaret was inspired by definition of a poem by popular. तो उसने ऐसा क्यों लिखा, एक पाइप के लिखा this is not a pipe, क्योंकि उसने एक पोएम पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि poetry is a pipe. So here what she means is कि this is not a poetry, so poetry is equals to pipe. तो she is saying this is not a poetry actually. तो उसको वहाँ से वो वर्ड का मतलब पता चला था. So Margaret, who considered himself a thinker who communicated through paint, wanted to prove that images could equal words in the expression of consciousness. As in how do you perceive something. आप किसी चीज़ को ऐसा बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसका वही नाम रखें. अब वो कॉन्शियसली आप कैसे परसीव करते हो, क्या आपको समझ आता है, दैट ऑल्सो मैटर्स. So with this iconic painting, with his iconic painting, Margaret showed how art can change our view of this world and give us a fresh opportunity to attempt to define the indefinable. So how we can define. So of course A और B जो बोल रहा है वो सेम टाइप की चीज़ की. Margaret who considered himself a thinker, उसने बोला कि इमेजेस से आप ये जो भी एक एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इक्वल कर सकते हो, आप कुछ वर्ड्स दे सकते हो, एंड देन यू कैन डिफाइन समथिंग विच इज़ कैनॉट बी डिफाइनेबल, या इट डिफाइन ब्रिंग न्यू डेफिनेशन, इट्स अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग. सो BA एक ही चीज़ बोले कि आप कोई भी चीज़ को खुद की डेफिनेशन दे सकते हो इन शॉर्ट, राइट. वेयर एज
डी ऑप्शन एक तो फुल नेम भी है, ऊपर से इट इंट्रोड्यूसेस द पेंटिंग। अब उसने ऐसा क्यों लिखा कि उसने एक पोएम पढ़ी थी जिसमें पाइप का मतलब कुछ और था, तो उसने क्यों वो दिया, फिर हम बी ए में बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, आई विल गिव यू अ मिनट टू रीड, ये पूरा आप रीड कर लो एंड उसके बाद हम एक पेयर फाइंड करेंगे। यस, डन रीडिंग, जल्दी बताओ, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कैसे न्यूज़पेपर सेंसेशनल चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हैं, नेगेटिव चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ही दिखाते हैं। एंड मिस्टर बेंटन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन ओनली इन दीज 2 सेंटेंसेस। तो पहले तो ए डी कि हाउ न्यूज़पेपर्स डील विथ एनी न्यूज़, जनरल बिल्कुल बात कर रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग इन विच द न्यूज़पेपर डील मोर जेनरसली विथ इंडिग्निटी, मतलब किसी की इंसल्ट होना है, किसी को ज़्यादा वो करना, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बताएंगे एट देयर इज इनफ इंडिग्नेशन। एंड देन कैसे इंडिग्नेशन, कौन से केस में किया इंडिग्नेशन, गोइंग to waste in the columns of London press to overturn the pyramids in ruins and to alter the course of, मतलब इन टॉपिक्स पे भाई बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है एंड एवरीथिंग। अब एक इस चीज़ का एग्जांपल हम दे रहे हैं कि मिस्टर बेंटन के केस में उन्होंने कितना ज़्यादा सेंसेशनलाइज कर दिया, कितना ज़्यादा बता दिया, मतलब इतनी ज़रूरत भी नहीं है। सो वी हैव हैड द कैरेक्टरिस्टिक flow of popular indignation of the execution of Mr. Benton. Right? Probably not one Englishman in a million had ever heard of, मतलब किसी ने सुना भी नहीं होगा, बट जब वो एग्जीक्यूट हुए एंड इज ग्रेव ही रोज, जब उसके बाद आफ्टर इज डेथ ही गॉट पॉपुलर, राइट। और उनके बारे में इतनी आउटरीच और बाय फॉरेनर्स एंड एवरीथिंग। सो जो बी एन सी आर एग्जाम्पल्स की कैसे न्यूज़पेपर डील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बेंटन का केस देख लो, राइट। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑलवेज कम्स लेटर, पहले आप मेन टॉपिक पे बात करोगे, जनरली कॉन्सेप्ट पे बात करोगे। सो ए डी बी सी, आई थिंक दिस वॉज कंपेरेटिवली ईजी। नाउ लेट अस रीड दिस वन एवरीवन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैसे लिटिल आयरलैंड में उस टाइम पे कितनी बीमारियाँ थी, चीज़ें फिर उसके बाद बेटर हुई, एट ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, अब देखो लास्ट है कि लिटिल आयरलैंड हैज़ डिसअपियर्ड, लिटिल आयरलैंड एज इन जहाँ पे जो भी नेगेटिव जो भी बीमारियाँ थी उस वो आयरलैंड, एंड 7 डायल्स आर नेक्स्ट ऑन द लिस्ट फॉर स्वीपिंग अवे, मतलब 7 जो भी वो भी अब साफ होने वाले हैं। मतलब पहले जो भी यहाँ पे हम बोले बेसिकली बहुत सारे बीमारियाँ थी, कॉलेरा, टाइफस, स्मॉल पॉक्स, अदर एपिडेमिक्स हैव शोन द ब्रिटिश बर्ड कॉमन पीपल मासेस the urgent necessity of sanitation in his towns and cities if he wishes to save himself and family from, तो भाई बिकॉज इतने कॉलेरा बीमारियाँ इतनी ज़्यादा लोगों को हो रही हैं, बार बार विजिट, मतलब रिपीट विजिट बार बार हो रही है, अभी ठीक हुआ फिर दूसरी बार हो गई। दैट मीन्स लोगों को पता चल रहा है ब्रिटिश मासेस को कि भाई हमें सैनिटेशन और क्लिनलीनेस की ज़रूरत है टाउन सिटीज़ में, अगर अपनी फैमिलीज़ को बचाना है और इन डिसीज़ हमें अगर ये नहीं चाहिए तो। सो अकॉर्डिंगली तो इसीलिए जब पता चल चुके क्लीन करना है, द मोस्ट क्राइंग अब्यूसेस डिस्क्राइब्ड इन द बुक हैव आइदर डिसअपियर्ड और हैव बीन मेड लेस कॉन्सिक्वेंस। तो जो भी क्राइंग मतलब जो भी नेगेटिव जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, या तो वो हैं ही नहीं या दिखा नहीं रहे हैं, बताया नहीं गया इन द बुक, जिस भी बुक में ये चीज़ लिखी हुई है। ड्रेनेज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, राइट। तो अब ये सी और डी सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं कि ये ए में है प्रॉब्लम, कि इनको पता चल चुका है क्लीनलीनेस की ज़रूरत है, ड्रेनेज इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, इम्प्रूव कर चुके हैं, वाइड एवेन्यूज़ हैव बीन ओपन आउट अथॉट मैनी ऑफ द वर्स्ट स्लम्स आई हैव टू डिस्क्राइब एंड एवरीथिंग। सो प्रॉब्लम टू सोल्यूशन ही हम हमेशा जाते हैं, राइट, प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। सो वी वेरी क्लियरली नो सी डी एंड में आएगा बिकॉज दोज आर द सोल्यूशन, प्रॉब्लम ए में है, राइट, जो यहाँ की स्टार्ट है। बी आपको फिट करना है, तो इतना आपको इफ क्लियर हो गया तो बी फिर तो एक्चुअली इसमें कुछ रीअरेंज करना ही नहीं है, ए बी सी डी विल बी लाइक दैट। गियर से कि प्रॉब्लम्स या तो गायब हो चुकी, कैसे गायब हो चुकी, डिसअपियर हो चुकी हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें की और अब इतना उस पर ध्यान नहीं है, उसके बारे में इतनी अब बात नहीं होती है। सो दैट इज़ इट एवरीवन फॉर टुडेज सेशन। प्लीज़ प्रैक्टिस वॉट एवर आई एम गिविंग यू। एट सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, बट जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव होना। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, आपको कोई बहुत ऐसे 5 मिनट की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो ठीक है, बट उसके साथ साथ आपको बहुत सारा डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, अल्टीमेटली चीज़ें पेशेंस के साथ एक टाइम आप लोगे, पढ़ाई करोगे 6 महीने 3 महीने, तभी आपको उस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, वो आपको हमेशा याद रखना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। बाय बाय।